Good evening, everyone. Yes, am I audible? Okay. Is my screen visible? Okay. Okay, so should I start or should I wait for a few minutes for more people to join? Okay, I'll wait for 2 more minutes and then I'll start. Okay, so I think I should start now. Enough people have joined. Okay, so in the last class we had completed till this bitwise operators. Okay, in the last class. So we'll move further. Okay. So here it is being told about the precedence of the operators. Precedence of the operator means if in an expression, in a mathematical expression, if there are like many operators are used, then which operator should be executed first. This is what is being told by this precedence of the operators, and it is in decreasing order. Decreasing order means on the top, whichever operator is on top is operated first before the latter ones. Okay, so first of all, in an expression, my voice is audible to everyone, right? Okay, okay, okay. So in an expression, if all these operators are there, then first of all, okay, okay. I think in the bitwise operators, I forgot. I think the bitwise complement and bitwise exclusive was left. So first of all, I think I need to explain that. Just a second. So bitwise and bitwise or I had already explained in the previous class. So now I am explaining the bitwise complement operator. Akash Osekar. Yes, I can speak in Hindi, but uh, many people, like in the previous class, there were people who were not able to understand Hindi. That's why I thought English would be general and maybe understood by everybody. That's why I'm speaking in English. But in this class, if everyone is okay with me speaking in Hindi, I can speak in Hindi. If anyone doesn't have any problem with me speaking in Hindi, everybody understands Hindi, then okay, I can speak in Hindi right now. Okay, is it okay with everyone? Akash, Anushka, John, Kabita, Rahul, Rituparna, Ria. Yes, sir. Okay. If anybody has any problem, just tell me in the chat.
I can speak in English. Otherwise, I'm going to speak in Hindi now. Okay. All right. ठीक है, तो मैं ये क्लास हिंदी में ही लूँगा. ओके. This is not working. Okay, so I was telling about the bitwise complement operator. So in the last class we had completed till bitwise, bitwise and bitwise or we had completed. So I'm starting from bitwise complement operator. Okay, so bitwise complement operator, what it does is, let's say we have a binary number in this form 1001011110. Okay, there's 8 bits. 1 2 3 4 5 6. Okay, so what bitwise complement operator does is, it just changes every ones to 0 and every zeros to 1. So on applying bitwise complement operator on this binary number, we will get 0 0 0, 0 will become 1, 1 will become 0, these zeros will become 1 and this one will become 0. So the bitwise complement of this binary number is this one. Okay, so binary complement is very easy, everyone is very easy, everyone will become 0 and every 0 will become 1. Okay, so that's easy. And then we have bitwise XOR operator. Okay, so this is the XOR operator. It needs to be applied on two binary numbers, let's say 100110001. Okay, and let's say another one is 01001101. Okay, so when bitwise XOR operator is applied, let's say we have two zeros, then when two, so this will become, okay, two zeros will become one and two ones. Okay, so two zeros, if the both of the binary digits are same, then it becomes zero. Okay, so in this case also both of the binary digits are same, so it becomes zero. And if both the binary digits are different, then it becomes one. So 1 0 will also become 1. So this is the notation for bitwise XOR operator. So if if XOR operator is applied on two binary digits and they are same, then it becomes 0. So in case of, okay, here it should be 1. So if both are 0, if either both are 0 or either both are 1, then they both will become 0. And if either of them are 1, then it will become 1. So these are two binary numbers and I'm applying the XOR operator on them. So 1 1 will become 0, 0 0 will become 1, sorry, 0 0 will become again 0, and 0 1 will become 1, 1 1 will become 0, 1 0 will become 1, 0 0 will become 0, 0 and 1 1, 1 0 1. Okay, so if binary XOR operator is applied on these two binary numbers, it will get this one. Okay, by following these four rules for XOR operator. Okay, so the bitwise operators are fine. Okay, left shift and right shift is not required much in this course. Okay, will not be using that much, so I am just leaving that. But if anybody wants me to explain, I can explain them also, but it is not much required. So this left shift and right shift I'm leaving. Just bitwise and or complement and XOR operators are enough for us to move further. Okay, so and or complement XOR clear to everyone. Yeah, if anybody has still any doubt, you may ask me, otherwise we'll be moving further. All right. All right. So I was telling about the precedence of the operators. So precedence of the operators means that in an expression, if many all these operators are there,
then which operator should be applied first? So first of uh, all the brackets will be solved. After that, all the operators will be solved. After that, plus, minus, and complement operator will be solved. Then division, floating point division, integer division, multiplication, and modulo, all these are solved at the same level. I explained that in the previous class also. Then plus and minus operators will be solved at the same level. Then these are left shift and right shift operators. Then the binary operators and XOR and OR operator. These are the binary operators. The precedence of them is that if and XOR and XOR and OR are there, then first of all AND will be solved, then XOR will be solved, then OR will be solved. Okay, and the binary, these are the logical operators, sorry, these are relational operators. The precedence of the relational of all the relational operators are same, they all will be solved at the same level. And these are the logical operators, not and or. So first of all not will be solved, and after that and will be solved, and after that or will be solved. Okay, so these are the precedence of the operators. Okay, you don't need to actually remember the precedence. You just have to, like, if you practice few of them, like few expression, if you try solving by yourself, you'll just remember it by yourself. Okay, you don't need to practice it much. Generally we give all this expression to just Python only, and it gives you the output. You don't need to like remember the precedence. Just have to keep in mind what is the, like, there is a precedence. You cannot just like directly solve anything. You have to remember that. Okay, you cannot solve like randomly any of the operators you want. You have to solve it according to this precedence table. All right. Okay, so now the variables and assignments statements, so we'll look into that. So variables provide a means to name values so that they can be used and manipulated later on. So what are variables? Variables are the objects that are used to store values. For example, 57 is a value, and I have stored it in this variable English. Okay, like in maths we do x is equals to 2. Okay, so x is a variable, 2 is a value. So this is how you give values to variables in Python. You just write the variable name and equals to sign, and after that the value is there. Okay, the Python style, often called Pythonic style or Pythonic way, variables are called names. So these variables here are called names, and an assignment is called an association on building. So this whole thing is called an association. We are associating the value 64 with the variable maths. Okay, so this is called an association or a building. Okay, so here is an example. Let's see. Okay, so here I've created the variable English with the value 57. If I run it, and after that if I check the variable English, I can see that English 57 is stored in English. Okay, after that I'm creating another variable maths. Okay, maths is storing the value 64. So if I run it, so math is now containing 64. I'm creating a third variable which is the sum of the first two variables. So if I run it, what will happen in math? So it will extract the value of math 64, extract the value of English 57. So 64 plus 57 is what? It is 121. It will 57 plus 64 is 121. That 121 will get stored in this total. After that, if you check total, we'll get 121. Okay, so this is how we assign the values to variables. Okay, we can create many as much variables as we want, and we can manipulate them. सर Yeah. सर एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू असाइन हो सकती है. एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू असाइन हो सकती. ओके, सॉरी, आई वाज सपोज टू टॉक इन हिंदी, राइट. ठीक है, मैं भूल गया. अगर मैं भूल जाऊँ तो प्लीज़ मुझे याद दिला देना. किसी ने बोला था कि हिंदी में बोलने को, एंड मैं फिर अचानक से इंग्लिश में बोलने लगा. ठीक है, किसने बोला था? आकाश औसेकर. ठीक है आकाश, आई एम सॉरी. अब से हिंदी में ही कंटिन्यू करेंगे. ओके, बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं गलती से इंग्लिश में बोलने लगूँ तो जस्ट मुझे रिमाइंड करा देना माइक ऑफ करके, माइक ऑन करके. ओके. हाँ, किसी ने कुछ बोला ना? किसी का कोई डाउट था अभी? किसने बोला? सर एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू हाँ, असाइन हाँ, होगी. एक वेरिएबल में एक बार में एक ही वैल्यू असाइन होगी. फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने वेरिएबल क्रिएट किया इंग्लिश इज इक्वल टू 57. लेट से मैं दूसरा वेरिएबल क्रिएट कर फिर मैं इंग्लिश चेक करूँगा तो मुझे 57 मिल जाएगा. ठीक है, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके बाद मैं इंग्लिश को अगेन क्रिएट करता हूँ, इस बार वेरिएबल
की वैल्यू होगी 50। अब मैं इसको रन करूँगा तो इंग्लिश में से 57 हट के 50 आ जाएगा। अब मैं इंग्लिश को चेक करूँगा, रन करूँगा तो मुझे 50 मिलेगा। ठीक है, तो एक टाइम पे एक वेरिएबल में केवल एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती है, मल्टीपल वैल्यूज स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी वैल्यू स्टोर करने का ट्राई करेंगे तो जो पहले वाली वैल्यू होगी वो हट जाएगी और नई वाली वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ओके, ओके सर। ऑल राइट। ठीक है, देन वी हैव, okay, this thing is clear cut. Okay, then we have, what is the syntax for assignment statement? We write the variable name, we put a equal to sign and then अरे यार, ठीक है, असाइनमेंट स्टेटमेंट कैसे, सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स मीन्स कि पाइथन का ग्रामर, पाइथन क्या रूल्स फॉलो करेगा किसी भी स्टेटमेंट को लिखने के लिए। तो इस सिंटैक्स, तो वेरिएबल असाइनमेंट का सिंटैक्स क्या होता है? पहले हम वेरिएबल लिखते हैं, फिर इक्वल्स टू साइन देते हैं, फिर एक्सप्रेशन लिखते हैं। ठीक है, तो ये पूरा सिंटैक्स होता है एक वेरिएबल असाइन करने का। ठीक है, एंड रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, अ वेरिएबल मस्ट बिगिन विथ अ लेटर और एन अंडरस्कोर। ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं जब भी हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो पहला रूल क्या है कि एक वेरिएबल मस्ट बिगिन विथ अ लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर। ठीक है, एक वेरिएबल को जब भी हम नेम करते हैं तो उस वो आइदर किसी एक लेटर ए बी सी डी, स्मॉल ए बी सी डी या कैपिटल ए बी सी डी या फिर अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी और चीज़ से शुरू होगा तो फिर वो एरर देगा। फॉर एग्जांपल, ओके, हाँ, यहाँ पे कोई एग्जांपल नहीं है। ठीक है, क्रिएट करते हैं। ओके, ठीक है, लेट्स से मैं एक किसी कैरेक्टर या अंडरस्कोर से वेरिएबल क्रिएट नहीं करता हूँ। लेट्स से मैं वेरिएबल क्रिएट करना शुरू करता हूँ 1 से, 1 ए बी सी इज इक्वल्स टू 24। तो ये तुम्हें दे देगा एरर, इनवैलिड सिंटैक्स, सिंटैक्स गलत है। सिंटैक्स गलत है मतलब पाइथन का ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है। ठीक है, क्या सिंटैक्स एरर है? सिंटैक्स एरर ये है कि जो ये वेरिएबल नेम है वो किसी डिजिट से शुरू नहीं हो सकता है, वो या तो अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए या तो किसी कैरेक्टर या तो किसी अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर से शुरू होना चाहिए। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये कायदे से रन कर जाएगा, ये कोई एरर नहीं देगा क्योंकि वेरिएबल का नेम जो है वो किसी अंडरस्कोर से शुरू है। ठीक है, एंड उसके बाद क्या होता है, दूसरा रूल क्या है? अ वेरिएबल मे कंटेन एनी नंबर ऑफ लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर कैरेक्टर्स, नो अदर कैरेक्टर अपार्ट फ्रॉम दीज इज अलाउड। ठीक है, एक वेरिएबल में, वेरिएबल क्रिएट करते टाइम हम या तो लेटर्स का यूज़ कर सकते हैं या तो डिजिट्स का यूज़ कर सकते हैं या तो अंडरस्कोर कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं, और इन सब कैरेक्टर्स को कितनी बार भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट इनके अलावा कोई और कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल जैसे कि हो गया हमारे पास स्टार, हो गया, स्टार भी एक कैरेक्टर है, हैश एक कैरेक्टर है, एट द रेट एक कैरेक्टर है। ठीक है, डॉलर एक कैरेक्टर है। ठीक है, और भी बहुत सारे, एम्परसैंड एक कैरेक्टर है। ठीक है, ये सब बाकी अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स और अंडरस्कोर को छोड़ के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनमें से किसी से भी हम एक पाइथन का वो शुरुआत नहीं कर सकते। ठीक है, सॉरी, केवल शुरुआत नहीं कर सकते, किसी भी, आई मीन वेरिएबल के नेम में डाल ही नहीं सकते। शुरुआत तो केवल अंडरस्कोर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर से करना है, बाकी उसके अलावा अगर हमें एक वेरिएबल में और कुछ कैरेक्टर्स यूज़ करने हैं तो वो केवल लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं और अंडरस्कोर कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। इनके अलावा कोई भी कैरेक्टर नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, फिर देखते हैं। ठीक है, तो ये वर्क करेगा क्योंकि इसमें सब वैलिड कैरेक्टर्स हैं। ए बी सी 1 2 3 एक्स वाई जी, ये भी वर्क करेगा क्योंकि इसमें भी सारे अल्फ़ाबेटिकल या न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, ये भी वर्क करेगा, ये भी वर्क करेगा, ये भी वर्क करेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि लेट्स से मैं ऐड करने की कोशिश करता हूँ ए बी स्टार। लेट्स से स्टार एक स्पेशल कैरेक्टर है, तो ए बी स्टार इज इक्वल्स टू 40। तो ये रन नहीं करेगा, ये एरर दे देगा। क्यों एरर दिया? क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल कैरेक्टर है। जितने भी हमारे जितने भी हमारे अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स, ठीक है, जैसे कि लेटर्स हो गए, डिजिट्स या अंडरस्कोर, इनके अलावा जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो सब स्पेशल कैरेक्टर्स कहलाते हैं। तो वो कोई भी, तुम किसी भी वेरिएबल में कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं डाल सकते। ठीक है, ऑलवेज यूज मीनिंगफुल वेरिएबल्स नेम, फॉलो कंसिस्टेंट स्टाइल इन चूजिंग वेरिएबल्स। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉट वैलिड वेरिएबल्स। नॉट वैलिड वेरिएबल्स का ये देखो कुछ एग्जाम्पल दिया है। सबसे पहले ये इसने ये वेरिएबल बनाया है, टोटल अंडरस्कोर नंबर फिर डॉट। ठीक है,
तो ये वैलिड क्यों नहीं है, कोई बताएगा? क्या एक्सप्लेन कर सकता है ये वैलिड वेरिएबल नेम क्यों नहीं है? यस, एनीबॉडी? सर डॉट की वजह से, हाँ, सर डॉट इसके की हम वजह से। लेटर और हाँ, अंडरस्कोर यूज कर सकते हाँ, हैं। हाँ, लेटर और अंडरस्कोर यूज़ करते हैं, डिजिट भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे डॉट यूज़ है, तो ये फिर ये इनवैलिड होगा, हो जाएगा, इनवैलिड वेरिएबल नेम हो जाएगा। और ये दूसरा वाला क्यों इनवैलिड है, फर्स्ट नंबर, इसमें क्या गलती है? सर क्योंकि डिजिट यूज किया हमने हाँ, सर। हाँ, तो इसमें ये गलती है कि डिजिट यूज़ तो कर सकते हैं बट वो वेरिएबल के स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये गलती है यहाँ पे, बिगिंस विद द डिजिट, सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ एन इनवैलिड वेरिएबल नेम। अमाउंट इन डॉलर, तो डॉलर यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर है तो इसको नहीं यूज़ कर सकते। उसके बाद ये टोटल अमाउंट में क्या एरर है बताओ? स्पेस दिया है सर, हाँ, बिना स्पेस, हाँ, अंडरस्कोर। हाँ, स्पेस दिया है। स्पेस भी एक स्पेशल कैरेक्टर है पाइथन में, ठीक है? तो हम स्पेस भी वेरिएबल नेम में स्पेस नहीं यूज़ कर सकते, इसीलिए ये भी इनवैलिड वेरिएबल है, ठीक है? Okay, so moving further, Python is case sensitive. For example, this age, small a age, capital A age are not same but different. ठीक है? Python केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? अगर मैं दो वेरिएबल क्रिएट करूँ, स्मॉल ए बी सी इज इक्वल टू 10 एंड कैपिटल ए बी सी इज इक्वल टू 20, तो ये दोनों यूनिक और डिफरेंट, यूनिक नहीं बट डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे, ठीक है? ये सेम वेरिएबल नहीं है, ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। कोई कंफ्यूज कर सकता है कि दोनों में तो ए बी सी ही है, तो दोनों सेम ही हैं, बट ऐसा नहीं है। पाइथन केस सेंसिटिव है, तो अगर मैं स्मॉल ए और कैपिटल ए यूज़ करता हूँ तो वो दोनों डिफरेंट होता है, ठीक है? तो स्मॉल ए बी सी में चेक करूँगा तो उसमें 10 होगा, कैपिटल ए बी सी चेक करूँगा तो 20 होगा, क्योंकि ये दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, ठीक है? तो पाइथन केस सेंसिटिव है। मोर देन वन वेरिएबल में रिफर टू द सेम सेम ऑब्जेक्ट, मतलब कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है तो हम उसको मल्टीपल वेरिएबल्स में असाइन कर सकते हैं, मतलब अलग अलग वेरिएबल्स में असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू 5, फिर मैंने लिख दिया b इज इक्वल्स टू a, तो a में 5 स्टोर था और मैं b इज इक्वल्स टू a कर दिया, तो a में जो स्टोर होगा वो b में जाके स्टोर हो जाएगा। तो इसको मैं जब रन करूँगा और चेक करूँगा मेरा b क्या है, तो b मुझे 5 मिलेगा, ठीक है? तो मेरे पास एक ही ऑब्जेक्ट था 5 और उसको मैंने मल्टीपल वेरिएबल्स में स्टोर कर दिया। 5 एक ही ऑब्जेक्ट था, उसको मैंने बी में भी स्टोर कर दिया, ए में भी स्टोर कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को मल्टीपल वेरिएबल्स में हम स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, ठीक है? उसके बाद मैं अगर ए इज इक्वल टू 7 करूँगा, लेट्स से ए इज इक्वल टू, यहाँ मैंने 7 किया तो ए में से 5 हट के 7 आ जाएगा, ठीक है? ठीक है, उसके बाद क्या है, द शॉर्ट हैंड नोटेशन वर्क्स फॉर ऑल बाइनरी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, ए इज इक्वल्स टू ए ऑपरेटर, बी इज इक्वल्स टू ए ऑपरेटर इक्वल्स टू बी, फॉर एग्जांपल दिस, ओके? तो फिर लेट्स सी व्हाट इज दैट साइन। तो ये कह रहा है अगर मैं कोई, okay, अगर मैं लिखता हूँ a इज इक्वल्स टू 5 एंड b इज इक्वल्स टू 10 एंड देन करता हूँ c इज इक्वल्स, ओके, देन करता हूँ a, ओके, देन मैं लेट से करता हूँ a इज इक्वल्स टू a प्लस बी, तो उसके बाद मैं अगर a चेक करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, a में 5 स्टोर है, b में 10 स्टोर है। अब मैंने कर दिया a इज इक्वल्स टू a प्लस बी, तो यहाँ a से 5 एक्सट्रैक्ट करेगा, b से 10 एक्सट्रैक्ट करेगा, 10 प्लस 5 15 हो जाएगा, तो 15 को a में स्टोर करेगा, तो मैं a को चेक करूँगा तो उसमें मुझे 15 मिल जाएगा, ठीक है? तो इस ये करने का जो हमने यहाँ पे किया है, इसको करने का एक दूसरा तरीका भी होता है, वो होता है a प्लस इक्वल्स बी। तो अगर मैं a प्लस इक्वल्स बी करूँगा तो ये क्या करेगा, ये सेम चीज़ करेगा जो कि यहाँ पे हो रहा है। इसका मतलब होता है a इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो फिर ये मुझे फिर से अगर मैं a चेक करूँगा तो a इज इक्वल्स टू 15 ही देगा, ठीक है? यहाँ पे देखो, लेट से मैंने a इज इक्वल्स टू 5 किया, ओके, हाँ, a इज इक्वल्स टू ए प्लस बी किया और उसके बाद a को कॉल किया, ठीक है? ए में 5 स्टोर है, बी में 10 स्टोर है, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी करूँगा, फिर मैं ए पे चेक करूँगा तो उसमें मुझे 15 मिल जाएगा। अब इसको करने का सेम दूसरा तरीका है, ये ए प्लस इक्वल्स बी।
फिर से मैंने ए में 5 स्टोर किया, बी में 10 स्टोर किया। अब मैं ए प्लस बी करूँगा, ये वाला ऑपरेशन करूँगा, फिर मैं ए को चेक करूँगा तो मुझे 15 मिलेगा। ठीक है, उसी तरह लेट्स से अगर मैं करता हूँ, अगर लेट्स से मुझे करना है ए इज इक्वल्स टू ए स्टार बी, तो क्या हो जाएगा, ए में चेक करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए स्टार बी मतलब ए टाइम्स बी मतलब 10 टाइम्स 5 यानी कि 50 मिल जाएगा। तो ये सेम चीज़ करने का दूसरा तरीका क्या है, ए स्टार इक्वल्स बी, तो ये भी सेम ही चीज़ देगा, ये भी ए इज इक्वल्स टू 50 ही देगा। ठीक है, लेट्स करते हैं। इसके बाद मैंने एंड किया, सर माइनस में भी वही होगा ना? हाँ माइनस में भी यही होगा, हर हर मैथमेटिकल ऑपरेटर में वही होगा। ठीक है, मैं एक जनरल नोटेशन उसका बताता हूँ अभी। मैंने किया ए इज इक्वल्स टू ए स्टार बी, अब इसको मैंने रन किया और उसके बाद ए चेक किया तो ए मुझे मुझे मिल जाएगा 150। फिर से मैं ये रन करूँगा, फिर मैं ए में 5, बी में 10 स्टोर किया। अब मैं ये ए स्टार इक्वल्स टू बी करूँगा, फिर ए चेक करूँगा तो ए मुझे मिल जाएगा अगेन। ओके, ए इज इक्वल्स टू 10, ओके 150 क्यों मिला, हाँ हाँ सॉरी, नहीं ए में 5 स्टोर है, बी में 10 स्टोर है। अब मैंने किया ए इज इक्वल्स टू ए टाइम्स बी, तो ए में मुझे मिल जाएगा 50। ओके, अगेन मैंने ए में 5 स्टोर किया, बी में 10 स्टोर किया, उसके बाद में ए स्टार बी इक्वल्स टू बी किया तो ए में फिर से 50 मिल गया, तो ये सेम चीज़ करेगा। तो जनरल नोटेशन में इसका बताता हूँ, अगर हमें करना हो ए इज इक्वल्स टू ए, मैथमेटिकल ऑपरेटर होगा यहाँ पे ए ऑपरेटर बी, दिस इज इक्विवेलेंट टू ए ऑपरेटर, सॉरी ए ऑपरेटर इक्वल्स टू बी। ठीक है, यहाँ पे तुम ऑपरेटर को किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेटर से रिप्लेस कर सकते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलो एक्सपोनेंट, किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेटर से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोटेशन है इसको लिखने का। ठीक है, ओके ओके, so let's move further. This thing is clear to everyone. A operator b, a is equals to a operator b is equivalent to a operator यस equals, सर। okay, just a second. Okay, so multiple assignments in a single statement, तो पाइथन में हमें और क्या बेनिफिट है, हम क्या कर सकते हैं कि हम एक ही सिंगल लाइन में हम मल्टीपल वैल्यूज़ को मल्टीपल वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जनरली अगर हमें ऐसे करना होता है, मल्टीपल वैल्यूज़ को मल्टीपल वेरिएबल्स में स्टोर करना होता है, तो हम कैसे करते हैं, हम देखो क्या करते हैं, हम करते हैं ए इज इक्वल्स टू 5, ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू 2 एंड सी इज इक्वल्स टू 3, ऐसे करते। बट एक अगर मुझे ये चीज़ एक सिंगल लाइन में करना हो, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल्स टू 1 कॉमा 2 कॉमा 3, तो ये सेम चीज़ करेगा, ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू 2, सी इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, वही मुझे करना हो ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल्स टू हाउ कॉमा आर कॉमा यू, तो हाउ को ए में स्टोर करेगा, आर को बी में स्टोर करेगा, यू को सी में स्टोर करेगा। ठीक है, तो ए में हाउ, बी में आर, सी में यू। ठीक है, ये शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, शॉर्टकट है मल्टीपल वैल्यूज़ को मल्टीपल वेरिएबल्स में स्टोर करने का सिंगल लाइन में। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास एक ही वैल्यू है, उसको मुझे मल्टीपल वेरिएबल्स में एक ही बार में स्टोर करना है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू 0, तो 0 जो है वो ए में भी स्टोर हो जाएगा, बी में भी स्टोर हो जाएगा। ओके, अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, कोई नहीं। ठीक है, तो मैंने अगर किया ए इज इक्वल्स टू बी इज, क्या कर रहे हो, ठीक है, तो ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू 10 मैंने किया, तो ए में भी 10 स्टोर हो जाएगा, बी में भी 10 स्टोर हो जाएगा और सी में भी 10 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो यह तरीका है एक सिंगल वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल्स में एक ही बार में या एक ही लाइन में स्टोर करने का। ठीक है, ओके, देन हमारे पास क्या है, ठीक है, ये वाली ये सारी चीज़ें क्लियर है, मल्टीपल असाइनमेंट इन अ सिंगल स्टेटमेंट और मल्टीपल असाइनिंग सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स इन अ सिंगल स्टेटमेंट।
सब शुरू में ही क्यों नहीं ज्वाइन करते? हाँ बताओ, क्लास भर में परेशान होता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कीवर्ड्स पे। कीवर्ड्स क्या होता है पाइथन में? कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड्स दैट आर ऑलरेडी डिफाइंड बाय द पाइथन फॉर स्पेसिफिक यूज। ठीक है, कीवर्ड्स रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जो स्पेसिफिक यूज के लिए काम आते हैं। ठीक है, तो सिंस वो रिजर्व्ड होते हैं इसीलिए हम उन रिजर्व्ड वर्ड को एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज कर सकते। ठीक है, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पज, दोनों किसी भी दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर नेमिंग ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि वेरिएबल के नेम को, सॉरी, वेरिएबल लिखने के लिए या नेम ऑब्जेक्ट्स को नेम करने के लिए हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। द लिस्ट ऑफ पाइथन कीवर्ड्स आर, ये कुछ पाइथन कीवर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 36 33 कीवर्ड्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फॉल्स, क्लास, फाइनली, इज, रिटर्न, नन, कंटिन्यू, ये सब हमारे पाइथन कीवर्ड्स हैं जिनको हम किसी और पर्पस के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली वेरिएबल नेमिंग के लिए। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने यहाँ पे किया क्लास, क्लास इज इक्वल्स टू 10। सिंस क्लास हम देख सकते हैं, क्लास मेरा यहाँ पे रिजर्व कीवर्ड है। यहाँ पे देखो कहाँ गया, क्लास कहाँ है? हाँ ये है क्लास। ठीक है, तो जो भी रिजर्व कीवर्ड्स होंगे वो देखो वो अलग से शो करेंगे, वो जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर का शो किया है तो वो अलग तरीके से शो होंगे, तो जिससे हमें अगर मैंने क्लास लिखा भी तो वो मुझे शो कर देगा तुरंत कि ये ग्रीन कलर में शो करेगा, तो तुम्हें मुझे तुरंत पता चल जाएगा कि ये रिजर्व्ड वर्ड है, इसीलिए मैं उसे एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज़ कर सकता हूँ। तो वही मैंने CLAS लिखा होता तो वो ब्लैक कलर में ही आता। ठीक है, वो डिफरेंट कलर में आता, वो वेरिएबल का नेम हो सकता था, लेकिन जैसे ही मैं CLASS लिखता हूँ वो तुरंत उसका कलर चेंज हो जाता है, हमें बताने के लिए कि ये एक रिजर्व्ड वर्ड है, इसको तुम एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर मैं क्लास इज इक्वल टू 10 लिखूँ तो वो मुझे एरर दे देगा, इनवैलिड सिंटैक्स। ये वैलिड सिंटैक्स नहीं है, या ये वैलिड चीज़ नहीं है जो तुम पाइथन में कर सकते हो। तुम किसी रिजर्व्ड कीवर्ड को यूज़ करके उसको एज अ वेरिएबल नेम की तरह यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ओके रिजर्व्ड कीवर्ड्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हमने अब यहाँ पे आइडियली के बारे में कुछ दिया है कि आइडियली में स्क्रिप्ट मोड होता है और ये सब होता है। तो सिंस हम आइडियली में काम नहीं कर रहे हैं, हम जुपिटर नोटबुक पे काम कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें ये सब पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ओके, जुपिटर नोटबुक सब ने इंस्टॉल कर लिया, एनाकोंडा सब ने इंस्टॉल कर लिया है, जुपिटर नोटबुक सब यूज़ कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है? Yes, sir. ओके, मैंने ग्रुप पे वीडियो भेजा था, जिसने नहीं किया है वो वीडियो देख के एनाकोंडा इंस्टॉल कर ले, क्योंकि हम सारा काम जुपिटर नोटबुक पे ही करेंगे। ओके, तुम लोग चाहो तो और कुछ स्पाइडर वगैरह या VS कोड वगैरह वो सब भी यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट मैं जुपिटर नोटबुक यूज़ करूँगा। ओके, तो ये चैप्टर का एंड हो गया, फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, हमने क्या क्या देखा? समरी है इसका, पाइथन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट्स वन एक्सप्रेशन एट अ टाइम, अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, हमने लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है, स्ट्रिंग को स्पेसिफाई करने के लिए सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट्स यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा बूलियन एक्सप्रेशंस इन while evaluating a boolean expression involving and operator, the second sub expression is evaluated only if the first sub expression yields true। ठीक है, सेकंड एक्सप्रेशन तभी इवेल्युएट होगा जब फर्स्ट एक्सप्रेशन उसका ट्रू यील्ड कर दे, ट्रू दे दे। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। उसी तरह और ऑपरेटर में अगर फर्स्ट सब एक्सप्रेशन फॉल्स देगा तभी सेकंड सब एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा या इवेल्युएट होगा। ठीक है, अ वेरिएबल इज अ नेम दैट रिफर्स टू अ वैल्यू। ठीक है, a variable name must begin with a letter or underscore. Python is case sensitive. Python programming can be done in interactive and script mode. Okay, ये समरी होगा फर्स्ट चैप्टर का। अभी किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, बिकॉज फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीट, विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर। अभी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज क्या करना, नेक्स्ट क्लास में मतलब ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करना जो भी मैंने बताया फर्स्ट चैप्टर में, फिर भी कोई डाउट आए तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ठीक है, यस सर। या अभी भी किसी को पूछना है तो पूछ लो, फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है फंक्शंस। ओके, फंक्शंस में भी काफ़ी कुछ है, हम लोग देखेंगे वन बाय वन। सर वो बाइनरी का समझ में। बाइनरी का क्या? ओके,
बाइनरी में क्या नहीं समझ आया बताओ। लास्ट क्लास में आए थे, किसने बोला है? आकाश। हाँ यस सर आया था लास्ट पर वो क्लास में आए समझ थे। नहीं। एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर समझ आया था? यस एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर समझ आया था? क्लियर हो, श्योर हो, या फिर से एक्सप्लेन करूं? शॉर्ट में तुम्हारा आवाज़ आ नहीं रहा है, तुम्हारा तुरंत माइक ऑफ हो जा रहा है, क्लियरली बोलो क्या कह रहे हो। शॉर्ट में कर दो सर। ठीक है, मैं कर देता हूँ फिर से। तो ओके, ठीक है। तो लेट से मेरे पास एक नंबर है, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि किसी नंबर को बाइनरी फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है। अगर वो नहीं समझ आया तो वो जो वीडियो अपलोड है यूट्यूब पे वो देख लेना, समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी लेट से मैं दो नंबर्स लेता हूँ। 10 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं? 10 हो जाएगा 8, 8 + 2 दैट इज़ 0 1 0 1, और हम 8 बिट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और लेट से मेरे पास दूसरा है 2, तो 2 को हम लिखेंगे 0 1 0 0 0 0 0 0। हाँ सर यही समझने है, 10 को 2 को ऐसे कैसे लिखते भाई नहीं। ऐसे कैसे लिखते हैं ये समझना था एक्चुअली मैंने। अब बाकी समझ आया, एंड ऑपरेटर कैसे अप्लाई करेंगे इस पे, और ऑपरेटर यस कैसे सर करेंगे? वो कर रहा है। अच्छा ठीक है, वो समझ आ गया, ठीक है। ये मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ उस वीडियो में भी है, वो वीडियो देख लेना, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो 10 को ऐसे लिखने के लिए क्या करते हैं? ओके, 10 को सबसे पहले मैं 2 से डिवाइड करूँगा, तो मुझे क्या मिल गया? नहीं, 2 से नहीं डिवाइड करना पड़ेगा। 10 को मैं इस तरह ब्रेक करूँगा सच दैट वो 2 के ओके 2 के मैं इसको पावर्स में लिख सकूँ। तो अगर मैं 10 को ब्रेक करूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 8 + 2। तो मुझे ये दोनों जो नंबर्स हैं ये 2 के पावर्स में, तो मुझे यही करना होता है। 10 को मैंने सबसे पहले ब्रेक किया, तो मुझे मैक्सिमम इसमें 2 का पावर क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम इसमें 2 का पावर मिल जाएगा 8, ठीक है। इससे ज़्यादा 2, इसके बाद 2 का पावर होगा 16, बट 16 इसमें इंक्लूड नहीं हो पाएगा, ठीक है, 10 में। तो मैक्सिमम 2 का पावर इसमें मिल रहा है 8 मुझे। 8 अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ तो मुझे उसके बाद 2 मिल जा रहा है, ठीक है। तो 8 + 2 मिल गया मुझे। तो 8 क्या होता है? 2⁻³ और 2 क्या होता है? 2⁻1। तो अब मुझे थर्ड प्लेस पे और फर्स्ट प्लेस पे 1 लिखना है, मतलब जीरोथ, ओके, थर्ड 3 2 1। तो सबसे पहले होता है जीरोथ प्लेस, मतलब कि 2⁻0, तो यहाँ पे 0 होगा। फिर फर्स्ट प्लेस आएगा, फर्स्ट प्लेस पे यहाँ 2⁻1 है, तो इसीलिए फर्स्ट प्लेस पे 1। फिर सेकंड प्लेस पे 0। फिर ये थर्ड प्लेस पे, बिकॉज यहाँ 2⁻3 है, तो थर्ड प्लेस पे 1 हो जाएगा। और सिंस हम 8 बिट्स यूज़ कर रहे हैं और बाकी मेरे चारों बिट्स 0 हो जाएंगे, क्योंकि फोर्थ पावर, फिफ्थ पावर, सिक्स पावर, सेवन्थ पावर यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो इस तरह हम 10th को बाइनरी फॉर्म में लिख सकते हैं। उसी तरह लेट से मुझे लिखना है बाइनरी में 21 को, तो 21 से मैं मैक्सिमम 2 का पावर सबसे पहले क्या एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ? 16, ठीक है। तो 21 के बाद अगर मैं इसमें से 16 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास 5 बच जाएगा। तो 16 + 5 लिख दिया मैंने। अब उसमें 16 तो हो गया, 16 तो 2 के पावर में है, तो ये ठीक है। 5 को अब मुझे तोड़ना है, तो 5 को 2 के पावर में कैसे तोड़ सकता हूँ? 5 को लिख सकता हूँ 4 2 प्लस, + 1। नहीं 2 + 3 नहीं, 4 + 1। मैक्सिमम 5 में 2 का पावर है 4, ठीक है। तो 4 + 1 हो जाएगा। 1 भी एक्चुअली 2 का पावर ही है, 2⁻0 1 होता है। तो ये 2 के पावर्स में हो गया। अब मैं इसको वो कर दूंगा, 2⁻0 हो गया, ये 2⁻2 हो गया, और ये 2⁻4 हो गया। तो अब मुझे जीरोथ प्लेस, सेकंड प्लेस और फोर्थ प्लेस पे 1 लिखना है और बाकी प्लेस पे 0 लिखना है। तो जीरोथ प्लेस पे 1 हो गया, फर्स्ट प्लेस पे 0 होगा क्योंकि 2⁻1 नहीं है, सेकंड प्लेस पे 1 होगा क्योंकि 2⁻2 है, थर्ड प्लेस पे फिर से 0 होगा, फोर्थ प्लेस पे फिर से 1 होगा, फिर 0 0 0। तो इस तरह 21 को मैं बाइनरी फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अभी क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है। अभी भी नहीं क्लियर हो तो तुम लास्ट वाला वीडियो भी देख सकते हो, फिर भी नहीं क्लियर हो नहीं तो सर नेक्स्ट, डन डन। हाँ ओके, नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। ओके ओके, तो हम और किसी को तो कोई डाउट नहीं है?
ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है, नेक्स्ट चैप्टर है फंक्शंस। फंक्शंस क्या होता है? सिंपल स्टेटमेंट्स कैन बी पुट टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस टू डू यूजफुल टास्क। ठीक है, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब प्रॉब्लम। ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ सब प्रॉब्लम्स आर देन इंटीग्रेटेड टू फॉर्म द फाइनल प्रोग्राम। तो हम क्या करते हैं, लेट्स से मेरे पास पाइथन में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़े प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं उस बड़े से प्रॉब्लम को स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करूँगा। ताकि मेरे पास एक बड़ा प्रॉब्लम है, तो लेट्स से मैंने उसको स्मॉलर 10 सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर दिया, जो 10 छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में। तो अब मैं उन 10 प्रॉब्लम का छोटा छोटा फंक्शन बनाऊंगा, फिर मैंने उस सारे सॉल्व प्रॉब्लम्स को या सॉल्व फंक्शंस को कंपाइल कर दूंगा, तो वो मुझे फाइनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, मेरे बड़े वाले प्रॉब्लम का। ठीक है, दिस अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग इज कॉल्ड स्टेप वाइज रिफाइनमेंट मेथड और मॉड्यूलर अप्रोच। ठीक है, इस तरह बड़े प्रॉब्लम को स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना और फिर उसको सॉल्व करना, ताकि हमारा बड़ा फाइनल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इसको स्टेप वाइज रिफाइनमेंट मेथड कहते हैं या मॉड्यूलर अप्रोच कहते हैं। ठीक है, और बड़े प्रॉब्लम को स्मॉलर सब प्रॉब्लम में डिवाइड करके जब मेरे पास एक स्मॉलर सब प्रॉब्लम होगा, उस स्मॉलर सब प्रॉब्लम को हम एक फंक्शन के फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। फिर उन सारे फंक्शंस को हम कंपाइल करेंगे तो मेरा बड़ा वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यही होता है फंक्शंस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, फंक्शंस आर जनरली ऑफ टू टाइप्स सच एज बिल्ट इन फंक्शंस और यूजर डिफाइंड फंक्शंस। नाम से ही समझ आ रहा है, बिल्ट इन फंक्शंस मतलब कि जब जो वो फंक्शंस होते हैं जो पाइथन में ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं, ठीक है, उनको बिल्ट इन फंक्शंस कहते हैं। और यूजर डिफाइंड फंक्शंस वो होते हैं जो फंक्शंस ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग नहीं होते हैं, उन्हें हम खुद से डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो हम दोनों देखेंगे, दोनों में क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शंस आर प्री डिफाइंड फंक्शंस दैट आर ऑलरेडी अवेलेबल इन पाइथन। ठीक है, ये ऑलरेडी पाइथन में अवेलेबल होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं। द फंक्शन इनपुट इनेबल्स अस टू एक्सेप्ट एन इनपुट स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर विदाउट इवेल्युएटिंग इट्स वैल्यू। ठीक है, तो इनपुट जो होता है वो एक बिल्ट इन फंक्शन होता है पाइथन में, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं, लेट से मैंने लिखा ए इज इक्वल्स टू इनपुट फंक्शन दिया। जब भी हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं तो हमें उसके साथ कुछ आर्ग्यूमेंट देना होता है। तो मैंने यहाँ इनपुट में यहाँ पे एक स्ट्रिंग, एक आर्ग्यूमेंट लेगा, स्ट्रिंग में मैं लिखता हूँ एंटर अ वैल्यू। ठीक है, तो इनपुट फंक्शन क्या करेगा, मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझसे एक वैल्यू मांगेगा, एंटर अ वैल्यू। अब मुझे एक वैल्यू देनी है, लेट से मैंने वैल्यू दिया 10। ठीक है, 10 वैल्यू दूंगा मैं और फिर उसको एंटर करूँगा। तब क्या होगा, ए में 10 वैल्यू स्टोर हो जाएगा। तो मैं उसे रन करूँगा तो मुझे ए में 10 मिल जाएगा। ठीक है, और इस 10 के बाहर तुम लोग देख सकते हो कि दो कोट्स हैं, सिंगल कोट्स हैं। ठीक है, 10 सिंगल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि 10 जो है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। ठीक है, 10 एक स्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक है, 10 यहाँ पे एक नंबर नहीं है, वो एक स्ट्रिंग है। तो इनपुट फंक्शन जो भी इनपुट फंक्शन में हम देते हैं, कुछ भी देंगे तो वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ जाएगा। तो मैं अगर बी लेता हूँ, बी एंटर अ वैल्यू, लेट से यहाँ पे मैं एक बूलियन वैल्यू लेता हूँ, लेट से मैं लिखता हूँ TRUE ट्रू। ट्रू एक बूलियन वैल्यू होता है, ट्रू। इसको मैं रन करूँगा, फिर मैं बी को चेक करूँगा तो वो मुझे एक बूलियन वैल्यू दे, बूलियन वैल्यू नहीं, स्ट्रिंग देगा, जो कि इस स्ट्रिंग में ये ट्रू स्टोर्ड है। तो ट्रू एक स्ट्रिंग है यहाँ पे। ठीक है, बूलियन वैल्यू नहीं है। अब अगर मैं सी रन करता हूँ, फिर से इनपुट फंक्शन यूज़ करता हूँ, अब इसका मैं 10 देता हेलो हूँ। सर, हाँ बोलो। इंटर द वैल्यू इक्वल टू दे सकते हैं? हाँ, इंटर द वैल्यू इक्वल टू दे सकते हैं, यहाँ पे तुम जो मन चाहो वो लिख सकते हो। ठीक है, लेट से मैं यहाँ लिखता हूँ एंटर द वैल्यू इक्वल्स टू। ठीक है, तो सर अगर वैल्यू टपल में चाहिए होगी तो? वैल्यू टपल में चाहिए होगी तो टपल में तो नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। टपल के लिए कुछ फंक्शंस होते हैं। वैसे एक्चुअली मैंने अभी तक टपल पढ़ाया नहीं है, तो अभी बाद में पढ़ाऊँगा तो एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, टपल में कैसे कर सकते हैं, ओके सर। क्योंकि सबको यहाँ पे टपल पता नहीं है, तो उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे एंटर द वैल्यू इक्वल्स टू लिख दिया मैंने। अब मैं इसको रन करूँगा। ठीक है, एंटर द वैल्यू इक्वल्स टू किया मैंने। ठीक है, तो ये एंटर द वैल्यू इक्वल्स टू आ गया यहाँ पे। अब मैं सी में एक वैल्यू दे देता हूँ, लेट से 10 दे देता हूँ। अब मैं इसको रन कर दूंगा। ठीक है, फिर मैं, ठीक है, अब मैं सी को रन करूँगा तो मुझे
10 भी एक स्ट्रिंग फॉर्म में मिल जाएगा अगेन, ठीक है। तो ये होता है इनपुट फंक्शन का काम। हम कुछ भी रैंडम यूज़र इनपुट दे सकते हैं किसी भी फंक्शन में। इनपुट फंक्शन का यूज़ क्या होता है, कभी कभी हमें पाइथन प्रोग्राम रन करते टाइम जब हम उसे रन करते हैं तो हमें रैंडम कुछ, या रैंडम नहीं बट एक कुछ वैल्यूज़ देनी होती हैं जो हमें पहले से पता होती है, बट हम डायरेक्टली उससे नहीं देते हैं, वो हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करके देते हैं। तो कभी कभी इनपुट फंक्शन का काफ़ी जगह यूज़ होता है, ताकि हम जब प्रोग्राम रन करें तो प्रोग्राम जब रन कर रहा हो तो रन करने के बीच में ही हमें वैल्यूज़ देनी होती है। तो वो वैल्यू तुम अपने प्रोग्राम में नहीं लिख सकते, वो तुम्हें रन टाइम पे लिखना होता है। तो रन टाइम पे लिखना होता है तो तुम इनपुट फंक्शन यूज़ करते हो, ओके। ताकि तुम जब प्रोग्राम रन करो तब तुम्हें वो पूछे कि मुझे एक वैल्यू दो, तब तुम वो वैल्यू दे सको, ठीक है। तो ये इनपुट फंक्शन का यूज़ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है इवैल फंक्शन। इवैल फंक्शन शॉर्ट फॉर्म है इवैल्यूएट का, ठीक है। इवैल्यूएट, इवैल्यूएट मीन्स इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएट हम किसे करते हैं, इवैल्यूएट जनरली एक एक्सप्रेशन को करते हैं। तो इवैल फंक्शन हमारा एक एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने के यूज़ होता है, ठीक है। तो लेट्स से मैंने यहाँ इवैल लिखा और इवैल को इनपुट जो होगा वो एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लो होगा, ठीक है। तो इवैल में मैंने लिखा 15 + 20, तो ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है बट उसको मैंने सिर्फ सिंगल कोट के अंदर दिया है, तो वो एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है। तो इवैल, तो वो मुझे इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करके दे देगा। तो 15 + 20 क्या होता है, 35। तो ये तुम्हें 35 दे देगा। उसी, अगर उसी की जगह मैंने केवल 15 + 20 लिखा होता बट उसे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में नहीं लिखा होता तो वो क्या करता, वो तुम्हें एरर दे देता, ठीक है। यहाँ पे इसने एरर दे दिया, टाइप एरर दे दिया, क्योंकि यहाँ पे 15 + 20 जो था वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में नहीं था। तो इवैल फंक्शन यूज़ करते टाइम इस बात का हमें ध्यान देना है कि हम जो भी एक्सप्रेशन लिखें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो मेरा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। सर अगर कोड सिंगल और डबल दे तो डबल से कुछ हाँ, फर्क डबल पड़ता है? डबल कोट्स में काम करेगा, ठीक है। डबल कोट्स भी काम करेगा, सिंगल डबल ट्रिपल कोट सब काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, सर इवेल न लेते हुए 15 + 20 डाला तो भी 35 था। हाँ, तो भी 35 आएगा, तो भी 35 ही आएगा। फिर इवेल क्यों डालेंगे? वेल क्यों डालेंगे, ओके। सर तब वो स्ट्रिंग नहीं देगा ना? हाँ, तब वो, नहीं नहीं, ये 35 जो है ये नंबर ही है, ये इंटीजर ही है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में नहीं है। स्ट्रिंग के फॉर्मेट में केवल हम इनपुट देते हैं। इवैल फंक्शन इसलिए यूज़ करते हैं, लेट्स से मुझे ये वैल्यू स्टोर करनी है तो ताकि मैं यहाँ पे इस तरह लिख सकूँ x इज इक्वल टू, बट वो उसमें भी हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन इवैल का ऐसे कोई अलग से आए, उसके दिमाग में नहीं आ रहा है। अगर सर मैं, इवल फंक्शन तो वो होता है ना जो जिस हाँ, वैल्यू डालेंगे वही वैल्यू देता है। नहीं नहीं, जो वैल्यू वो डालेंगे वो वैल्यू ही नहीं देगा, वो एक वैल्यू एक्सप्रेशन लेगा, उस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करके देगा। तो अगर मैं सिंगल वैल्यू भी देता हूँ, लेट्स से यहाँ पे अगर मैं से 15 देता हूँ तो 15 भी मुझे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में देना होगा। अब फिर 15 अपने आप में एक कंप्लीट एक्सप्रेशन भी है, तो वो 15 सिंपली रिटर्न करके देगा, क्योंकि कोई ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ हो नहीं रहा है, ठीक है। तो बिना इवैल फंक्शन का यूज़ करके भी तुम वो कर सकते हो, बट इन जनरल ऐसा किया जाता है। इवैल फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो बट बिना यूज़ किए भी काम हो जाएगा तुम्हारा, वैसे तो सही बात है। बट तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे पास ये सब फंक्शन है, अगर हम चाहे तो वो सब यूज़ कर सकते हैं, इनपुट फंक्शन, इवैल फंक्शन, ठीक है। ओके, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है अभी? ओके। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इवैल फंक्शन का ये एक यूज़ हो सकता है यहाँ पे, देखो। अगर हम इनपुट लेते हैं एंटर अ नंबर, लेट से मुझे एक नंबर एंटर करना है, ठीक है। इनपुट फंक्शन यूज़ करके मैं एक नंबर एंटर करता हूँ, लेट से मैं नंबर एंटर करता हूँ अगेन 10, ठीक है। अब मेरा क्या दिक्कत है यहाँ पे, अब मैं एक्स को लूँगा तो वो एक नंबर नहीं है एक्चुअली, वो एक स्ट्रिंग है, ठीक है। बट मुझे 10 नंबर चाहिए था, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे मैं इनपुट फंक्शन के बाहर, इनपुट फंक्शन का जो पूरा कोड था इसको मैंने इवैल फंक्शन के अंदर लिख दिया।
अब मैं ये रन करूँगा, अब मैं 10 लिखूँगा तो वो मुझे x को एक नंबर के फॉर्मेट में देगा। देखो यहाँ पे स्ट्रिंग में था सिंगल कोट्स के अंदर, बट यहाँ पे नंबर है, सिंगल कोट्स के अंदर नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो तुम कंसिडर कर सकते हो कि इवैल फंक्शन का वन ऑफ द यूज़ ये है। ठीक है, अब अगर मैं इस इनपुट फंक्शन में, हाँ, इवैल फंक्शन का एक और मेजर यूज़ है कि अगर मुझे इनपुट में पूरा एक एक्सप्रेशन देना हुआ, लेट्स से 10 प्लस 2 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, कुछ भी लंबा सा एक्सप्रेशन, ओके, ठीक है, कुछ भी लंबा सा एक्सप्रेशन देना हुआ इनपुट में, ठीक है, तो वो तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेगा, बट तुम्हें चाहिए नंबर के फॉर्म में, ठीक है, और वो भी वो कंप्लीट एक्सप्रेशन जो है वो तुम्हें इवेल्युएट करके चाहिए, तो वो तुम्हें फिर इवैल फंक्शन का यूज़ कर सकते हो अब यहाँ पे। ठीक है, अब तुम इसको इवेल्युएट करोगे तो तुम्हें एक्स को इस पूरा इवेल्युएट करके तुम्हें 10 2 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1 प्लस 10 इज इक्वल टू तुम्हें 11 दे देगा। तो ये इवैल फंक्शन का ये एक दो यूज़ है। यस सर। समझ आ गया? ओके, ठीक है, सबको क्लियर है इवैल फंक्शन का क्या यूज़ है? इस तरह हम एक्सप्रेशन दे के उसको इवैल फंक्शन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं और न्यूमेरिकल फॉर्म में आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, इंटीजर या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के फॉर्म में। ओके, क्लियर है सबको? ओके, ठीक है, वी कैन प्रिंट मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल कॉल टू प्रिंट फंक्शन वेयर एक्सप्रेशंस आर सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है, उसके बाद प्रिंट फंक्शन का यूज़ बताया है कि प्रिंट फंक्शन यूज़ करके हम मल्टीपल वैल्यूज़ को एक ही साथ प्रिंट कर सकते हैं। तो 2 567 234 ये मेरे 3 वैल्यूज़ थी, अब मुझे इन तीनों को एक ही लाइन में प्रिंट करना है, तो मैं प्रिंट फंक्शन यूज़ करके तीनों को एक लाइन में प्रिंट कर दूंगा। उसके अलावा लेट्स से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, नेम इज इक्वल टू रमन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रिंट कर रहा हूँ हेलो, और उसके बाद मैं ये नेम प्रिंट कर रहा हूँ, ये नेम को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके रमन ले लेगा। उसके बाद मैं बैकस्लैश एन यूज़ कर रहा हूँ। बैकस्लैश एन क्या करता है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि बैकस्लैश एन तुम्हें न्यू लाइन में ले आता है। फिर ये बैकस्लैश एन की वजह से न्यू लाइन में आ जाएगा, फिर करेगा 2 + 2 इज इक्वल टू, लेट्स से मैं यहाँ से अभी बैकस्लैश एन हटा देता हूँ। ठीक है, 2 + 2 इज इक्वल टू, इसके बाद ये स्ट्रिंग लिखेगा 2 + 2 इक्वल्स टू, और यहाँ पे इसके बाद 2 + 2 इसको इवेल्युएट करके दे देगा तुम्हें वैल्यू। ठीक है, तो इसने सबसे पहले यहाँ पे हेलो स्ट्रिंग था तो हेलो प्रिंट किया। उसके बाद यहाँ पे नेम को प्रिंट करना था, नेम में क्या स्टोर है, रमन, तो इसने रमन प्रिंट किया। उसके बाद इसने ये स्ट्रिंग प्रिंट किया जो कि था 2 + 2 इक्वल्स, तो यहाँ पे 2 + 2 इक्वल्स इसने प्रिंट कर दिया। उसके बाद इसने यहाँ पे 2 + 2 लिखा था जो कि 4 होगा, तो 2 + 2 को इवेल्युएट करके यहाँ पे 4 दे देगा। ठीक है, वहीं फिर अगर मैंने यहाँ पे बैकस्लैश एन लगा लिया होता तो यहाँ पे ये बैकस्लैश एन के बाद जो भी है उसको वो न्यू लाइन में ले आता, बैकस्लैश एन की वजह से ये न्यू लाइन में आ जाता है, तो बाकी आगे का जो भी स्ट्रिंग है वो न्यू लाइन में आ जाएगा और फिर वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके मल्टीपल वैल्यूज़ को एक ही बार में प्रिंट कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, सर ब्लैक स्लैश एन सिंगल कोट्स की पहले लिखा तो भी नहीं चाहिए क्यों? बैकस्लैश एन सिंगल कोट्स के अगर मैं पहले लिखूँगा, यही क्वेश्चन है ना, सिंगल कोट्स के पहले, तो वहाँ पे वो यहाँ पे एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि बैकस्लैश एन को तुम्हें हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर ही लिखना होता है, सिंगल कोट्स के बाहर लिखोगे तो एरर दे देगा। बैकस्लैश एन का ये फॉर वो भी, उसको बैकस्लैश एन को एज ए स्ट्रिंग ही कंसिडर करता है, तो उस स्ट्रिंग्स को हमेशा हमें सिंगल कोट्स के अंदर देना होता है, इसीलिए स्ट्रिंग के अंदर होना चाहिए। दूसरा तरीका इसको ये है लिखने का, यहाँ पे कॉमा दे दो और यहाँ पे फिर दूसरे सिंगल कोट्स में बैकस्लैश एन दे दो, तो यहाँ तुम्हारा फिर से ऐसे कर देगा, न्यू लाइन में आ जाएगा। फिर यहाँ उसके बाद तुम्हारा लिखेगा 2 + 2 इक्वल्स और 2 + 2 इक्वल्स 4। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है? कौन पूछ रहा था? यस सर। ओके, ठीक है, तो ये प्रिंट फंक्शन का काम होता है, डिफरेंट वैल्यूज़ को हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन क्या बताता है, डिफरेंट हमारे पास जो डेटा टाइप्स होते हैं उनके टाइप्स बताता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे
लेट से मैंने x इज इक्वल टू ए बी सी एक स्ट्रिंग क्रिएट किया, मैं इसको रन करूँगा, x में ए बी सी स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगा। अब मुझे चेक करना है कि मेरा जो x वेरिएबल है उसका टाइप क्या है, मतलब x वेरिएबल में कौन से टाइप का डेटा स्टोर है। मैं टाइप ऑफ x करूँगा तो वो तुम्हें str दे दे रिटर्न कर देगा। str मतलब कि स्ट्रिंग। क्यों स्ट्रिंग इसने रिटर्न किया, क्योंकि x का जो टाइप था वो था स्ट्रिंग, क्योंकि x में एक स्ट्रिंग स्टोर था ए बी सी। ठीक है, तो वो तुम्हें str रिटर्न कर देगा। उसी तरह मैं y इज इक्वल टू 20 लिखूंगा, अब y में एक इंटीजर स्टोर्ड है, 20 एक इंटीजर है, तो मैं टाइप ऑफ y चेक करूंगा तो मुझे मिलेगा int। int मीन्स इंटीजर, क्योंकि y में एक इंटीजर स्टोर्ड है। ठीक है, उसी तरह मैं प्रिंट करूंगा टाइप ऑफ 12, टाइप ऑफ 12.5, टाइप ऑफ हेलो, टाइप ऑफ इंट। लेट्स अभी इसको रिमूव कर देता हूँ, इस पे आते हैं। ठीक है, अगर मैंने लेट से प्रिंट किया ये मल्टीपल टाइप्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, तो देखो तुम्हें क्या रिटर्न करेगा। टाइप ऑफ 12, टाइप ऑफ 12 को इसने प्रिंट कर दिया। ये तुम्हें बता रहा है कि 12 जो है वो क्लास बिलोंग करता है इंटीजर को। इंटीजर पूरा एक क्लास होता है पाइथन में, तो ये इंटीजर क्लास को बिलोंग करता है ये 12। 12.5 कौन से क्लास को बिलोंग करता है, 12.5 बिलोंग करता है क्लास फ्लोट को। टाइप ऑफ हेलो क्या है, हेलो कौन से क्लास को बिलोंग करता है, क्लास स्ट्रिंग को। ठीक है, उसी तरह लेट से तुम्हें देखना है कि ये जो इंट फ्लोट और ये सब बूल है, इन सब का क्लास क्या है। लेट से टाइप ऑफ इंट देखूंगा मैं, टाइप ऑफ str देखूंगा, टाइप ऑफ बूल देखूंगा, तो अगर देखो तुम्हें क्या मिलेगा, तो ये सब बिलोंग करते हैं क्लास टाइप को, बिकॉज ये सब एक डेटा टाइप के, मतलब ये सब खुद अपने आप में एक डेटा टाइप है। इंटीजर एक डेटा टाइप है, str स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, बूलियन एक डेटा टाइप है, तो ये सब बिलोंग कर रहे हैं क्लास टाइप को। ठीक है, तो इन सब का टाइप टाइप ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये सब एक डेटा टाइप है, इंट एक डेटा टाइप है, str एक डेटा टाइप है, बूल एक डेटा टाइप है। लेकिन 12, 12.5 और हेलो ये सब क्या है, ये सब एक डेटा टाइप को बिलोंग कर रहे हैं। 12 इंट डेटा टाइप को बिलोंग कर रहा है, 12.5 फ्लोट डेटा टाइप को बिलोंग कर रहा है, हेलो स्ट्रिंग डेटा टाइप को बिलोंग कर रहा है। बट इंट क्या है, इंट अपने आप में एक डेटा टाइप है, इसीलिए क्लास टाइप को बिलोंग कर रहा है। स्ट्रिंग और बूल भी अपने आप में एक डेटा टाइप है, तो ये क्लास टाइप को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है सबको। ओके, ठीक है, अब ओके, काफ़ी लोग ने छोड़ दिया। ओके, कोई नहीं। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन क्या होता है कि तुम्हारा एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है जिसके में डेसिमल के बाद ढेर सारे डिजिट्स होते हैं और उसको हमें राउंड ऑफ करना होता है, तो उसके लिए हम राउंड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अगर लेट से मैं राउंड करता हूँ 89.123, ठीक है, मुझे इसे राउंड ऑफ करना है, तो ये अगर मैं रन करूँगा राउंड 89.123, तो ये 89.123 इस फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को तुम्हें एक इंटीजर में राउंड ऑफ करके दे देगा। ठीक है, तो ये तुम्हें 89 दे देगा। लेट्स से मुझे ये राउंड ऑफ करना है, बट मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, तो मैं कॉमा 2 दूंगा, फिर मैं इसे रन करूँगा, तो ये तुम्हें 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करके दे देगा। तो 89.12 दे दिया इसने। अब लेट से मेरे पास बड़ा सा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है 89 पॉइंट दिस 18394 समथिंग, और ये मुझे 4 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करके चाहिए, तो मैं राउंड फंक्शन यूज़ करूँगा और फिर ये करूँगा, तो ये मुझे 4 डेसिमल प्लेसेस तक 1839 राउंड ऑफ करके दे देगा, 89.1839। ठीक है, तो ये यूज़ है राउंड फंक्शन का, किसी भी बड़े फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास और भी फंक्शन है, str एक फंक्शन है। str फंक्शन क्या करता है, तुम्हारे पास जो भी होता है उसको एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दे देता है। अगर मैं लिखता हूँ str 123, 123 एक इंटीजर है, अब ये इस इंटीजर को एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दे देगा, स्ट्रिंग str फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखो सिंगल कोट्स हैं, तो ये 123 जो था वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब देखो 123 यहाँ पे एक इंटीजर है, अब लेट से मुझे इस इंटीजर को फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करना है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में, तो यहाँ पे मैं फ्लोट फंक्शन यूज़ करूँगा। तो फ्लोट फंक्शन क्या करेगा, इस इंटीजर को फ्लोटिंग नंबर में कन्वर्ट कर देगा, तो 123 हो जाएगा 123.0।
उसी तरह लेट से मेरे पास 123.0 होता, मुझे उसको एक इंटीजर में कन्वर्ट करना होता, तो मैं इंट फंक्शन यूज़ करता, आई एन टी फंक्शन, तो ये 123 हो जाएगा। लेट से मैं 0 की जगह अगर यहाँ पे 5 लिखूँ तो ये फिर भी उसमें से केवल इंटीजर पार्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट करके तुम्हें वो दे देगा 123। उसी तरह लेट से मैं करता हूँ 123.45, ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, इसको मुझे एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो अगेन मैं str फंक्शन यूज़ करूँगा, तो मुझे ये स्ट्रिंग में मिल जाएगा 123.45, अब स्ट्रिंग बन जाएगा। अब लेट से बट मैं 123.45 ये क्या है, ये ना फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है, तो ये तुम्हें एरर दे देगा। क्यों एरर दिया इसने? क्योंकि इंट फंक्शन जो है, इंट फंक्शन हमेशा एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू एज एन आर्ग्यूमेंट लेगा, उस एज उसका जो पैरामीटर जाएगा या आर्ग्यूमेंट जाएगा वो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होना चाहिए, बट यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रिंग है, तो इंट फंक्शन को तुम किसी भी स्ट्रिंग पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, ये एक स्ट्रिंग था इसीलिए इसने एक एरर दे दिया। बट तुम स्ट्रिंग इंट को फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू पे अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे 123.45 स्ट्रिंग नहीं है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, तो यहाँ पे ये वर्क करेगा, इसने 123 करके इस स्ट्रिंग इस फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करके दे दिया। ठीक है, अभी सर अगर ये 123.67 होता तो राउंड ऑफ भी कर देता? 123.67 नहीं, राउंड ऑफ नहीं करता, बस जो उसका फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है उसमें से जो इंटीग्रल पार्ट है, इंटीजर पार्ट है, उसको बस एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। तुम्हें राउंड ऑफ करना है तो तुम्हें इंट की जगह यहाँ पे राउंड फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, राउंड फंक्शन यूज़ करोगे तो 123.67 राउंड ऑफ हो जाएगा 124। ठीक है, तो राउंड ऑफ करने के लिए राउंड फंक्शन है, और इंटीग्रल पार्ट केवल एक्सट्रैक्ट करने के लिए इंट फंक्शन है। ठीक है, और सर टाइप का, सर एट द रेट, अगर एट द रेट हैश एन का टाइप क्या होगा? देखते हैं। एट द रेट हैश हम कैसे लिखते हैं? एट द रेट और हैश हम लिखते हैं स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, ऐसे डायरेक्टली हम लिख नहीं सकते, तो वो एक यस सर। स्ट्रिंग टाइप में होगा। ठीक है, एट द रेट ओके हैश सर। स्टार क्वेश्चन मार्क एम्परसेंड, ठीक है, कुछ भी हमें लिखना हो ये सब, तो वो एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में हम लिखते हैं, तो उन सब का टाइप स्ट्रिंग होगा, एस टी आर। ओके, ओके सर। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। दूसरे और भी हमारे पास कई ढेर सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं, तो दूसरा और फंक्शन हो गया हमारे पास मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन क्या होगा? मैक्स फंक्शन एक हमारे पास ढेर सारे इंटीजर या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज एज एन इनपुट लेगा, और उसमें से तुम्हें रिटर्न करके दे देगा जो भी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे इस मैक्स फंक्शन ने लिया 59, 80, 95.6, 95.2, तो इन चारों में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है? इन सब चारों में से मैक्सिमम वैल्यू है 95.6, तो 95.6 इन चारों में से एक्सट्रैक्ट करके रिटर्न कर देगा तुम्हें 95.6। ठीक है, यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे लिखा है मैंने 59, 80, 95.6, 95.2, इसे मैं रन करूँगा तो मुझे 95.6 रिटर्न कर देगा। उसी तरह मैक्स का अपोजिट है मिनिमम फंक्शन। मिनिमम फंक्शन सारे नंबर्स को लेगा, इनमें तुम यहाँ पे जितने भी नंबर्स दे सकते हो, जितने चाहो। ठीक है, कितने भी नंबर्स देख सकते हो, तो इन सब नंबर्स में से मिनिमम जो है वो एक्सट्रैक्ट करके तुम्हें दे देगा। तो 59, 80, 95.6, 95.2 में इन चारों में से सबसे मिनिमम है 59। ठीक है, तो ये 59 तुम्हें रिटर्न करके दे देगा। ओके, ठीक है, उसके बाद यस सर। मैक्सिमम फंक्शन जो है वो केवल हम नंबर्स पे नहीं या इंटीजर्स या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ पे नहीं, बल्कि हम स्ट्रिंग्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से मेरे पास 4 स्ट्रिंग्स हैं, हेलो, हाउ, आर एंड यू, ये चारों स्ट्रिंग्स हैं, तो इन चारों स्ट्रिंग में से पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम फंक्शन। मैक्सिमम फंक्शन इन स्ट्रिंग्स पे क्या करेगा? देखो क्या करेगा, अगर मैंने इस पर रन किया तो इसने मुझे मैक्सिमम रिटर्न करके दिया यू। कोई बता सकता है इसने यू क्यों रिटर्न किया? यस, ठीक है, मैं बताता हूँ। क्या होता है, हमारे पास जो स्ट्रिंग्स होते हैं, जो हमारे पास डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं उन, सर उनके आईडी के कारण? नहीं आईडी नहीं, आईडी नहीं, जो हमारे पास बता रहा हूँ मैं, जो सारे कैरेक्टर्स होते हैं ए बी सी डी स्टार हैश ये सब, उन सब की आस्की वैल्यूज़ होती हैं। आस्की वैल्यूज़ क्या होती हैं? देखो, आस्की वैल्यू टेबल, तो इसका इमेज लेते हैं आस्की वैल्यू का।
ये वाला रहता है। ये ठीक है, ठीक। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। आस्की वैल्यू टेबल क्या होता है, जो हमारे पास डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, यूनिवर्सली उन सब का एक पर्टिकुलर आस्की वैल्यू होता है। उस आस्की वैल्यू से हम उस कैरेक्टर को, मतलब उसमें क्या बोलते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसमें स्टोर किए हुए रहते हैं। कि जैसे हमारे पास कैरेक्टर है यहाँ पे प्लस, तो प्लस का आस्की वैल्यू है 43, तो 43 जो है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल मतलब वैल्यू है जो कि इस कैरेक्टर को असाइंड है, ठीक है। आस्की का फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो अगर हमें प्लस यूज़ करना हो तो उसका ASCII वैल्यू हम देंगे 43, ठीक है। तो ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल वैल्यूज़ होते हैं जो कि हर एक कैरेक्टर को दिए जाते हैं, ठीक है। प्लस का ASCII वैल्यू है 43, कॉमा का ASCII वैल्यू है 44, माइनस का ASCII वैल्यू है 45। उसी तरह सारे जो डिजिट्स होते हैं, मतलब जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं पाइथन में, तुम जितने भी कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हो या किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में जितने भी कैरेक्टर्स तुम यूज़ कर सकते हो, उन सब कैरेक्टर्स की स्पेसिफिक ASCII वैल्यू होती है, ठीक है। तो यह सब सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। स्पेस भी एक कैरेक्टर ही है, तो स्पेस की भी आस्की वैल्यू होती है, वो क्या होती है, 32 होती है। एक्सक्लेमेशन मार्क की 33 होती है, डबल कोट्स की 34 होती है। उसी तरह सारे ABCD, कैपिटल ABCD, कैपिटल ए की आस्की वैल्यू होती है 65। उसी तरह सारे स्मॉल ABCD की भी आस्की वैल्यू होती है। स्मॉल ए की आस्की वैल्यू होती है 97, बी की होती है 98, ठीक है। तो इसी तरह सारे कैरेक्टर्स की, हमारे पास जितने भी पॉसिबल कैरेक्टर्स हैं उन सब की आस्की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे ये मैक्सिमम फंक्शन क्या करता है, मैक्सिमम फंक्शन इन सारे स्ट्रिंग्स में से फर्स्ट कैरेक्टर लेता है, उन सारे फर्स्ट कैरेक्टर की आस्की वैल्यू चेक करता है। तो यहाँ पे h की आस्की वैल्यू चेक करेगा, हाउ के h की आस्की वैल्यू चेक करेगा, इस r की a की x की वैल्यू चेक करेगा, और u के y की x आस्की वैल्यू चेक करेगा। तो इन सब में इसको मिल जाएगा कि किसका किसका था, h का आस्की वैल्यू क्या है, 104 है। r का a था तो a का आस्की वैल्यू है 97, और u का y सर था। कैपिटल स्मॉल के भी दूसरे दूसरे होते हैं। हाँ, कैपिटल के आस्की वैल्यू अलग होते हैं, स्मॉल कैरेक्टर्स के आस्की वैल्यू अलग होते हैं, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे सर ये हेलो का एच कैपिटल लेने के बाद भी वाई यहाँ ओ पे यू ही बड़ा है मैक्स है। यहाँ पे हम हेलो का h कैपिटल नहीं स्मॉल ही ले रहे हैं, ठीक है। ओके, नहीं सर, लेने के बाद भी वाई ओ यू है। रुको, तो पहले मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो समझ लो, फिर तो मैं तुम्हारे क्वेश्चंस पे आता हूँ। सबको तो समझने दो एक बार, ठीक है। तो a का ASCII वैल्यू था 97, h का ASCII वैल्यू था 104, और y का ASCII वैल्यू था 121। तो 97, 104 और 121 में सबसे बड़ा क्या है, y बड़ा है सबसे। सॉरी, 97, 104 और 121 में 121 सबसे बड़ा है, और 121 किसका ASCII वैल्यू है, y का। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे तुम्हें u जो है वो मैक्सिमम मिल जाएगा, u मैक्सिमम है, ठीक है। क्योंकि बिकॉज y का ASCII वैल्यू सबसे बड़ा है, इसीलिए तुम्हें ये वाला स्ट्रिंग जो है ये तुम्हें एज अ मैक्सिमम रिटर्न करके दे देगा। सर इसने पहला कैरेक्टर ही चेक किया ना? हाँ, केवल पहला कैरेक्टर चेक किया, यहाँ पे h चेक किया, यहाँ पे h, यहाँ पे a, यहाँ पे y, ठीक है। उसी तरह लेट से तुम्हें देना हो कि इस तरह, लेट से तुम्हें अगर दो नंबर्स में लेस देन साइन, लेट से 2 लेस देन 3 करना होता, तो 2 लेस देन 3 ट्रू था,
तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ये तुम्हारा रिलेशनल ऑपरेटर है जो कि ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। उसी तरह लेट से तुम्हें दो स्ट्रिंग्स में चेक करना हो, एक हेलो है और एक हाउ है, ठीक है। ये दो स्ट्रिंग्स में तुम्हें चेक करना हो कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो ये लेस देन ऑपरेटर यूज करोगे। लेस देन ऑपरेटर क्या करेगा, इनके सबसे पहले फर्स्ट कैरेक्टर को चेक करेगा। फर्स्ट कैरेक्टर एच है तो दोनों का आस्की वैल्यू सेम हो गया, इन दोनों स्ट्रिंग्स के फर्स्ट कैरेक्टर का आस्की वैल्यू सेम हो गया। तो फिर उसके बाद उनके सेकंड कैरेक्टर पे जाएगा। सेकंड, इसमें सेकंड कैरेक्टर ई है, इसमें सेकंड कैरेक्टर ओ है। अब देखो ई और ओ में किसका आस्की वैल्यू बड़ा है, ई का वैल्यू है आस्की वैल्यू है 101, ओ का आस्की वैल्यू है 111। तो यहाँ पे हमें ओ का आस्की वैल्यू बड़ा है तो हाउ जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हेलो हाउ से बड़ा है तो यहाँ पे लेस देन साइन की वजह से यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देगा, क्योंकि हाउ जो है वो हेलो से एक्चुअली में बड़ा है। उसी तरह लेट से हमें मिनिमम चेक करना हुआ, हेलो हाउ आर यू, तो यहाँ पे मैं रन करूँगा तो मुझे आर रिटर्न कर देगा, क्योंकि इन चारों स्ट्रिंग में से अगर हम फर्स्ट कैरेक्टर लें तो ए का जो है आस्की वैल्यू सबसे कम आएगा, इसीलिए यहाँ पे आर जो है वो मिनिमम रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, लेट से मैं करता हूँ, लेट से मैं चारों स्ट्रिंग्स का पहला कैरेक्टर सेम कर देता हूँ, हेलो हाउ हिम, और यहाँ पे कर देता हूँ हर। ठीक है, अब क्या करेगा, लेट्स से ठीक है, ये मेरे पास चार स्ट्रिंग्स हैं, हेलो हाउ हिम और हर। तो इन चारों में फर्स्ट कैरेक्टर जो है चारों में सेम है, तो इन चारों की आस्की वैल्यू भी सेम हो जाएगी। तो अब क्या करेगा पाइथन, अब इन चारों स्ट्रिंग्स के सेकंड कैरेक्टर को इवैल्यूएट करेगा। इसका सेकंड कैरेक्टर है ई, इसका सेकंड कैरेक्टर है ओ, इसका सेकंड कैरेक्टर है आई, और इसका सेकंड कैरेक्टर है ही ई। ठीक है, तो ई ओ आई और ई में देखते हैं कौन सा सबसे बड़ा है। ई का है 101, ओ का है 111, आई का है 105। तो ओ का आस्की वैल्यू सबसे बड़ा है 111। तो यहाँ पे ये हाउ जो है वो रिटर्न करके तुम, सॉरी, तो हाँ यहाँ पे हाउ जो है वो तुम्हें रिटर्न करके दे, सॉरी हेलो क्या दे रहा है, ओके हाँ यहाँ पे मिनिमम है ना, तो मिनिमम में ये मिनिमम तुम्हें, अगर मैं मैक्सिमम करता एम एक्स मैक्सिमम रिटर्न करता तो यहाँ पे हाउ देता, क्योंकि ओ जो है ओ का आस्की वैल्यू सबसे बड़ा है। ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज़, ये मिनिमम और मैक्सिमम स्ट्रिंग्स पे कैसे अप्लीकेबल है, ये वाली चीज़ सबको क्लियर है या अभी कोई डाउट है? ओके, और अभी कोई बीच में कोई डाउट पूछ रहा था, कैपिटल एच कैपिटल वाई करके, कौन था, पूछो। समझ आ गया। समझ आ गया आकाश, ठीक है। ओके, ठीक है, तो ये मैक्सिमम फंक्शन जो है, मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन या लेस देन ग्रेटर देन साइन, इन सब स्ट्रिंग्स पे ऐसे अप्लीकेबल होता है। इनका आस्की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करता है, पहले कैरेक्टर का आस्की वैल्यू चेक करता है, जिसका पहले कैरेक्टर का आस्की वैल्यू मैक्सिमम होता है वो मैक्सिमम फंक्शन रिटर्न कर देता है, या मिनिमम फंक्शन यूज़ करोगे तो जिस स्ट्रिंग का आस्की वैल्यू, जिस स्ट्रिंग के कैरेक्टर का पहले कैरेक्टर का आस्की वैल्यू मिनिमम होगा वो रिटर्न कर देगा। और अगर सबका पहला कैरेक्टर सेम है तो वो सेकंड कैरेक्टर कंपेयर करेगा, सेकंड कैरेक्टर भी सेम है तो थर्ड कैरेक्टर कंपेयर करेगा। ठीक है, ऐसे करेगा मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन। ठीक है, तो ये यूज़ है मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन का। ओके, अब हमारे पास है पावर फंक्शन, POW। ठीक है, पावर फंक्शन देखो क्या करता है, पावर फंक्शन जो है दो नंबर्स को एज एन इनपुट लेता है। लेट्स से मैंने 2 दिया और 10 दिया, तो ये क्या करेगा, अगर हम 2 रेस्ट टू द पावर 10 करें तो 2 डबल स्टार 10 करेंगे, इसको रन करेंगे तो हमें 1024 मिल जाएगा। 2 रेस्ट टू द पावर 10 1024 होता है। तो पावर फंक्शन तुम्हारा यही करता है, दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है और पहले आर्ग्यूमेंट को रेस कर देता है दूसरे आर्ग्यूमेंट पे। ठीक है, तो 2 रेस्ट टू द पावर 10 हो जाएगा 1024, तो वो तुम्हें पावर फंक्शन रिटर्न करके दे देगा 2 रेस्ट टू द पावर 10, यही करेगा पावर फंक्शन। ठीक है, ओके, तो ये कुछ इनबिल्ट फंक्शंस हो गए पाइथन में। अब क्या होता है, कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो हमारे मतलब हमारे पास क्या होता है, मॉड्यूल्स होते हैं या फिर लाइब्रेरीज होते हैं। ठीक है, उन मॉड्यूल्स या लाइब्रेरीज में ढेर सारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैथ मॉड्यूल होता है, तो मैथ में हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि मतलब मैथमेटिकल पर्पस के लिए हम वो यूज़ कर सकते हैं।
तो मैथ मॉड्यूल में हमारे पास किस किस टाइप के फंक्शन होते हैं? तो मैथ मॉड्यूल है या एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में ढेर सारे फंक्शंस हैं। तो क्या क्या फंक्शन है? सील फंक्शन है, फ्लोर फंक्शन है, फैब्स फंक्शन है, एक्सपी फंक्शन है, लॉग फंक्शन है, पावर फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, कॉस साइन टेन, आर्क कॉस आर्क साइन, ये सब सारे फंक्शंस हैं। उसी तरह अलग अलग मॉड्यूल में अलग अलग फंक्शंस होते हैं। अभी हम केवल एक ही मॉड्यूल देखेंगे, वो है मैथ मॉड्यूल। आगे हम और भी मॉड्यूल्स देखेंगे जिन अलग अलग मॉड्यूल्स में उन्हीं उस मॉड्यूल से स्पेसिफिक रिलेटेड फंक्शंस होते हैं। तो अभी हम मैथ मॉड्यूल्स से रिलेटेड फंक्शंस देखेंगे, उसमें क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। और किसी भी मॉड्यूल से फंक्शन को यूज़ करने के लिए तुम्हें सबसे पहले उस मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल ये मैथ मॉड्यूल है, तो अगर तुम्हें सील फंक्शन यूज़ करना है तो सील फंक्शन मैथ मॉड्यूल में है, तो तुम्हें उसके पहले मैथ मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो हम करेंगे इम्पोर्ट मैथ, तो मैथ मॉड्यूल इम्पोर्ट हो जाएगा। ये रन करने के बाद अब हम मैथ डॉट सील फंक्शन यूज़ करेंगे। तो सील फंक्शन क्या करेगा? एक नंबर लेगा, उस नंबर का जो है उस नंबर से, उस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से सबसे छोटा इंटीजर जो होगा, उस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से सबसे सबसे क्लोजेस्ट जो इंटीजर होगा, जो उससे छोटा होगा, वो उसे रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। तो 13.97 से छोटा इंटीजर जो 13.97 के सबसे क्लोज है वो है 13, ठीक है। तो मैं सॉरी ओके, सील फंक्शन 13.97 से बड़ा, 13.97 से जो बड़ा है, सबसे बड़ा और सबसे क्लोजेस्ट जो इंटीजर है वो है 14, तो वो रिटर्न करके देगा। फ्लोर फंक्शन क्या करेगा? 13.97 से छोटा और 13.97 से सबसे क्लोजेस्ट वो रिटर्न करके देगा। तो फ्लोर फंक्शन तुम्हें 13 रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो ये सील और फ्लोर फंक्शन का यूज़ है। वो कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स लेते हैं, सील फंक्शन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लेगा और उस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से सबसे क्लोजेस्ट और उससे बड़ा जो भी सबसे क्लोजेस्ट इंटीजर है वो तुम्हें रिटर्न करके देगा। और फ्लोर जो है 13.97 से क्लोजेस्ट छोटा जो इंटीजर है, 13.97 से छोटा और उस 13.97 के सबसे क्लोजेस्ट जो इंटीजर है वो तुम्हें रिटर्न करके देगा 13, ठीक है। तो ये सील और सर फैब। अगर मिड में हुआ तो अगर मैं 13.50 हुआ। 13.50, ठीक है। अगर मैं सील में देता हूँ 13.50, तो 13.50 से बड़ा और 13.50 सबसे क्लोजेस्ट कौन सा नंबर है? वो 14 ही है, तो वो 14 रिटर्न करके देगा। और 13.50 से बड़ा, सॉरी 13.50 से छोटा और 13.50 से सबसे क्लोजेस्ट कौन सा नंबर है? वो है 13, तो वो 13 ही रिटर्न करके देगा, ठीक है। समझ आ गया सील और फ्लोर? यस सर। सील फंक्शन बड़ा देगा 13, वो जो भी तुम्हारा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, और फ्लोर फंक्शन छोटा देगा और जो सबसे क्लोजेस्ट है, ठीक है। तो सील और फ्लोर फंक्शन हो गया। उसके बाद हमारे पास है फैब्स फंक्शन। FABS का मतलब है फ्लोटिंग पॉइंट एब्सोल्यूट वैल्यू। तो तुम्हारा -11 दोगे तो -11 का एब्सोल्यूट वैल्यू तुम्हें रिटर्न करके देगा। तो -11 का एब्सोल्यूट वैल्यू 11 होता है, तो वो 11 रिटर्न करके देगा। लेट्स से मैंने लिखा होता -11.45, तो ये -11.45 का एब्सोल्यूट वैल्यू है 11.45, मतलब जो भी नेगेटिव होगा उसको पॉजिटिव कर देगा, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा ही। एब्सोल्यूट फंक्शन का यही काम होता है कि पॉजिटिव को पॉजिटिव रखना और नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना। तो ये मैथ्स डॉट फैफ आप फंक्शन यही करेगा, ठीक है। हाँ सर आपने 11 दिया तो ये फ्लोट में देगा वैल्यू। हाँ, फ्लोट में ही देगा क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट में ही कन्वर्ट कर देगा 11.0, ठीक है। क्लियर है? यस सर। ओके ओके। उसके बाद कौन सा फंक्शन है? EXP फंक्शन। EXP मतलब एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट EXP फंक्शन क्या करेगा? ये भी मैथ मॉड्यूल का फंक्शन है, तो हम यूज़ करेंगे। मैथ मॉड्यूल के किसी भी फंक्शन को हमें यूज़ करना हो तो हम मॉड्यूल का नाम लिखेंगे। सबसे पहले तो मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट मैथ, फिर उस मॉड्यूल का नाम लिखेंगे मैथ, फिर उसके बाद एक डॉट लगाएंगे। डॉट के बाद हम वो फंक्शन लिखेंगे उस मॉड्यूल का जो हमें यूज़ करना हो। तो सील फंक्शन यूज़ करना है तो हम लिखेंगे मैथ डॉट सी, फ्लोर फंक्शन मैथ डॉट फ्लोर, EXP फंक्शन मैथ डॉट EXP लिखेंगे, ठीक है। EXP फंक्शन यहाँ पे क्या करेगा? EXP फंक्शन हमारे पास रेस करके दे देगा। लेट से तुम्हें करना है, लेट से में करना है e⁻⁻10, ठीक है। तो ये मैथ डॉट EXP फंक्शन हमें ये करने में हेल्प करेगा।
तो मैथ डॉट ई एक्स पी हम 10 करेंगे तो ये ई रेस्ट टू द पावर 10 तुम्हें करके दे देगा। तो ई रेस्ट टू द पावर 10 ये होता है 22026 समथिंग ये, ठीक है। तो ये तुम्हें मैथ डॉट ई एक्स पी फंक्शन से कर सकते हो। अब मैथ डॉट लॉग क्या करेगा, मैथ डॉट लॉग करेगा तुम्हें, ओके, सबसे पहले ये एक बेस वैल्यू लेगा, ओके। हाँ, मैथ डॉट लॉग क्या करके देगा, मैथ डॉट लॉग तुम्हें ये जो सेकंड दो आर्ग्यूमेंट लेगा, पहला आर्ग्यूमेंट 100 है, दूसरा आर्ग्यूमेंट 10 है, तो ये तुम्हें बताएगा 10 का कौन सा पावर 100 होता है, 10 रेस्ट टू द पावर व्हाट इज 100, तो 10 रेस्ट टू द पावर 2 इज 100, तो 10 रेस्ट टू, तो ये 2 रिटर्न करके दे देगा। और अगर तुम इसमें दूसरा आर्ग्यूमेंट नहीं दोगे, ठीक है, दूसरा आर्ग्यूमेंट अगर तुम्हें नहीं दोगे तो ये तुम्हें मैथ डॉट लॉग 100 तुम्हें दे देगा ये 4.60। क्यों दिया, क्योंकि अब तुम्हें ये बता रहा है ई रेस्ट टू द पावर व्हाट इज 100, तो ई रेस्ट टू द पावर 4.60 समथिंग ये 100 होता है, तो ये तुम्हें अभी ई के पावर में बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे बेस है लॉग का ई, और अगर तुम्हें बेस 10 रखना है तो सेकंड आर्ग्यूमेंट 10 दे दोगे तो ये तुम्हें 2 दे देगा। अब लेट से यहाँ पे तुम्हें बेस देना है, बेस देना है, लेट से तुमने बेस दे दिया 2, तो 2 रेस्ट टू द पावर व्हाट इज 100, तो 2 रेस्ट टू द पावर 6.64 समथिंग इज 100, ठीक है। तो सेकंड आर्ग्यूमेंट तुम्हारा बेस है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट वो वैल्यू है जहाँ पे वो वैल्यू है कि वो बताएगा कि 2 रेस्ट टू द पावर व्हाट, तुम्हारे बेस के कौन से पावर पे रेस करेंगे कि वो तुम्हारा वो वैल्यू मिल जाए, तो वो तुम्हारा ये मैथ डॉट लॉग फंक्शन तुम्हें दे देगा, ठीक है। अभी वैसे ही मुझे मैंने मैथ डॉट लॉग 100 किया और उस पर टू द बेस 2 और उस पर राउंड फंक्शन लगा दिया, नहीं सॉरी, मैथ डॉट लॉग 100 किया मैंने, मैथ डॉट लॉग 100 क्या दे रहा था, मैथ डॉट लॉग 100 ये दे रहा था 4.60, तो ये लंबा सा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। अब लेट से मुझे ये राउंड ऑफ करना है तो मैं राउंड फंक्शन यूज़ करूँगा, मैथ डॉट लॉग 100 और इसको मैं राउंड कर दूंगा 2, तो यहाँ पे देखो ये जो 2 है ये लॉग फंक्शन के अंदर नहीं है, लॉग फंक्शन के बाहर है, ये राउंड फंक्शन के अंदर है, तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक तुम्हें राउंड करके दे देगा, तो 4.61 तुम्हें दे देगा, ठीक है। उसी तरह हमारे पास मैथ मॉड्यूल में स्क्वायर रूट फंक्शन होता है SQRT, तो SQRT क्या करेगा, नंबर लेगा उसका स्क्वायर रूट रिटर्न करके दे देगा, तो 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है 11 होता है, तो 11 रिटर्न करके दे देगा। लेट से तुम्हें स्क्वायर रूट फाइंड करना है 456 का, तो 456 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 21.35 समथिंग। SQRT फंक्शन स्क्वायर रूट फंक्शन है जो कि तुम्हें नंबर का स्क्वायर रूट रिटर्न करके देगा, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें किसी सर भी, लॉग हाँ बोलो, सर लॉग 100 की वैल्यू तो सर 4.605 है ना, तो इसने 2 तक के तो 4.60 नहीं आना था। नहीं तो ये राउंड ऑफ करने का भी तो वो होता है ना कि अगर 60 के बाद 5 है मतलब 5 या 5 से बड़ा है तो वो तुम्हें 61 देगा, अगर ये 5 से छोटा होता तो तुम्हें लेट से यहाँ पे मैं लिख दूँ 4.660, अगर मैं लेट से 4 लिखूँ तो ये तुम्हें 460 ही देगा, अगर मैं यहाँ 605 लिख दूँ तो ये तुम्हें 61 दे देगा। समझ आ रहा है क्या कर रहा है, मतलब अगर ये, यस सर। ठीक है, क्लियर है, ओके, ठीक है। मतलब ये अगर 50 से बड़ा हुआ तो वो उसके बाद वाली वैल्यू देगा, और अगर 50 से छोटा हुआ तो वो उससे पहले वाली वैल्यू देगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, ओके। तो SQRT फंक्शन क्या करेगा, स्क्वायर रूट दे देगा उसके बाद, तो ये सब सारे हो गए मैथ मॉड्यूल के सारे फंक्शंस। उसी तरह साइन कॉस टेन ये सब सारे फंक्शंस तुम यूज़ कर सकते हो, आर्क साइन आर्क कॉस आर्क टेन। डिग्री क्या करेगा, देखो यहाँ पे सब लिखा हुआ है कौन सा फंक्शन क्या करेगा। इसका SQRT फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। सील फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न द स्मॉलेस्ट इंटीजर greater than or equal to x, return the large floor function return the largest integer greater than or equal to x। ये पीपीटी में तुम्हारा सब अच्छे से लिखा हुआ है। cos x क्या करेगा, रिटर्न द कोसाइन ऑफ x, रिटर्न द साइन ऑफ x। उसी तरह रिटर्न द इनवर्स कोसाइन ऑफ x इन रेडियंस। डिग्रीज फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न अ वैल्यू इन डिग्री इक्विवेलेंट टू द इनपुट वैल्यू ऑफ x। तो तुम्हें x वैल्यू दोगे जो कि रेडियन में होगा, उसको वो डिग्री में कन्वर्ट करके दे देगा। और रेडियन क्या लेगा, रेडियन x जो है x को उसमें डिग्री में तुम इनपुट करोगे रेडियन फंक्शन के अंदर, तो वो तुम्हें एक रेडियन में कन्वर्ट करके दे देगा।
ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, मैथ डॉट सिल 3.4 का होगा 4, मैथ डॉट फ्लोर 3.7 का होगा 3, dir तुम ये अगर तुम्हें चेक करना है कि किसी पाइथन में कितने सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं तो तुम dir और उसके अंदर अंडरस्कोर अंडरस्कोर बिल्ट इन लिखोगे। फॉर एग्जांपल ऐसे dir अंडरस्कोर अंडरस्कोर बिल्ट इन अंडरस्कोर अंडरस्कोर, तो ये तुम्हें दे देगा वो सारे फंक्शंस जो कि तुम यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे फंक्शंस पाइथन में अवेलेबल हैं जो तुम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और अगर लेट से तुम्हें पता करना है कि कोई फंक्शन तुम्हें नहीं पता है कि ये फंक्शन क्या करता है, मैथ डॉट कॉस तुम्हें लेट से नहीं पता है कि क्या करता है, तो तुम मैथ डॉट कॉस को इस हेल्प फंक्शन के अंदर लिखोगे तो तुम्हें बता देगा कि मैथ डॉट कॉस क्या करेगा। तो हेल्प ऑन बिल्ट इन फंक्शन कॉस इन मॉड्यूल मैथ, ये तुम्हें बता रहा है कि कॉस मैथ मॉड्यूल में है। कॉस क्या करेगा, एक वैल्यू लेगा x, रिटर्न द कोसाइन ऑफ x मेजर्ड इन रेडियंस। x तुम एक रेडियंस में एंटर करोगे तो उसका कोसाइन वैल्यू रिटर्न करके दे देगा। मतलब तुम x कोसाइन के फंक्शन के अंदर x कोई भी वैल्यू दे दोगे x की, तो वो इन द फॉर्म ऑफ रेडियंस लेगा और फिर उसका कोसाइन वैल्यू निकाल के तुम्हें रिटर्न कर देगा। उसी तरह तुम लेट से करते हो मैथ डॉट, और हमने क्या फंक्शन यूज़ किया हुआ है, मैथ डॉट सील फंक्शन, लेट से SEIL। तो सील फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न द सीलिंग ऑफ x एज एन इंटीग्रल, दिस इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x, वही जो यहाँ पे लिखा था, रिटर्न द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x। तो यही, तो हेल्प फंक्शन तुम्हें बता देगा कि तुम्हारा जो फंक्शन है मैथ डॉट सील फंक्शन वो क्या करेगा। ठीक है, ओके, तो ये सारे हो गए तुम्हारे बिल्ट इन फंक्शंस। ठीक है, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, उसके अलावा बिल्ट इन फंक्शंस के अलावा मैंने क्या बताया था, हमारे पास यूज़र मेड फंक्शन होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन होते हैं या यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। तो हमने सारे बिल्ट इन फंक्शंस देख लिए, अब हम देखते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो यूज़र खुद से बनाता है। ठीक है, तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन यहाँ पे हम देखेंगे कि फंक्शन को हम कैसे बना सकते हैं। ओके, तो पाइथन में फंक्शन लिखने का कुछ सिंटैक्स होता है जो हमें फॉलो करना होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिखने के लिए। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिखने के लिए हमें सबसे पहले डेफ कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे शायद एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे सिंटैक्स दिया हुआ है कि अगर यूज़र डिफाइंड फंक्शन देना है, लिखना है, क्रिएट करना है, तो तुम कैसे क्रिएट करोगे। तो सब द सिंटैक्स फॉर फंक्शन डेफिनेशन, तो सबसे पहले डी ई एफ कीवर्ड दोगे, डी ई एफ मतलब डेफिनेशन। उसके बाद तुम्हें फंक्शन का नाम देना है, उसके बाद एक ब्रैकेट के अंदर तुम्हें कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, मतलब ब्रैकेट के अंदर तुम सारे पैरामीटर्स दोगे अपने जो तुम्हारा वो फंक्शन यूज़ करेगा, जो कि, और वो सारे पैरामीटर्स कॉमा सेपरेटेड होने चाहिए। उसके बाद एक कोलन लगाओगे, कोलन के बाद नीचे तुम स्टेटमेंट लिखना शुरू करोगे तुम्हारा फंक्शन क्या करेगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने डेफ कीवर्ड यूज़ किया है, फिर मैंने फंक्शन का नाम दिया है, फंक्शन का नाम है एरिया रेक्टेंगल। एरिया रेक्टेंगल मतलब कि वो फंक्शन जो है वो कैलकुलेट करेगा तुम्हारे एरिया का रेक्टेंगल, और ये दो पैरामीटर्स ले रहा है एल और बी। एल और बी मतलब लेंथ और ब्रेथ, और फिर लेंथ और ब्रेथ लेगा एक रेक्टेंगल का और फिर उसका एरिया कैलकुलेट करके देगा। उसके बाद है कोलन, कोलन के बाद, कोलन के बाद जैसे ही तुम एंटर करोगे तो तुम देखोगे एक, उसके बाद इंडेंटेशन क्रिएट हो जाएगा। इंडेंटेशन, तो ये सिंटैक्स होता है, अगर तुम एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है तो एल इंटू बी कर दोगे, और फिर उसके बाद तुम्हें वो वैल्यू रिटर्न करनी होती है। तो रिटर्न करने के लिए तुम रिटर्न कीवर्ड यूज़ करोगे। तुम्हें क्या रिटर्न करना है, तुम्हें एरिया रिटर्न करना है, तो तुम रिटर्न करोगे एरिया। ठीक है, तो तुमने ये फंक्शन क्रिएट कर लिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो दो पैरामीटर्स ले रहा है लेंथ और ब्रेथ, और कैलकुलेट कर रहा है एरिया इज इक्वल्स टू एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, और फिर तुम्हें रिटर्न करके दे रहा है एरिया। तो तुम अब एरिया, अब तुम्हारा ये फंक्शन जो है वो क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब तुम्हें ये फंक्शन को यूज़ करना है, तो कैसे यूज़ करोगे, इसका नाम कॉल करोगे एरिया रेक्टेंगल। तो एरिया रेक्टेंगल को तुमने कॉल किया, अब उसमें तुम्हें दो पैरामीटर्स देना है लेंथ और ब्रेथ। लेंथ क्या है 5, ब्रेथ क्या है 10। तो ये क्या करेगा, ये इस रेक्टेंगल जिसका लेंथ 5 है और ब्रेथ 10 है, उसका एरिया कंप्यूट करके तुम्हें दे देगा।
पहले रन करना होगा, ठीक है। एक रेक्टेंगल जिसका लेंथ 5 है और ब्रेथ 10 है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा 5 इंटू 10, इस फंक्शन के अंदर जाएगा, एल इंटू बी कंप्यूट करेगा जो कि 50 होगा, उसको एरिया वेरिएबल में स्टोर कर देगा, फिर उसके बाद तुम्हें रिटर्न कर देगा एरिया। एरिया में क्या स्टोर था 50, तो तुम्हें इसने तुम्हें 50 रिटर्न कर दिया, ठीक है। सर अगर रिटर्न ना दिया तो? अगर तुम रिटर्न नहीं दोगे तो वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, फिर तो तुम ऐसे ही कुछ नहीं करेगा, ठीक है। सर एरर आएगा? यानी एरर नहीं देगा लेकिन कुछ रिटर्न भी नहीं करेगा, एरर तो नहीं देगा, ठीक है। रिटर्न कीवर्ड यूज करना मतलब कंपलसरी नहीं होता है, तुम्हारे ऊपर होता है, अगर तुम्हें रिटर्न कराना है तो कर सकते हो, नहीं कराना है तो नहीं भी कर सकते। कई सारे हम ऐसे भी फंक्शन बनाते हैं जिनमें हमें कुछ रिटर्न नहीं कराना होता है, वो फंक्शन बस हम यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें कुछ रिटर्न वैल्यू हमें नहीं चाहिए होती है, ठीक है। तो और ये बात ध्यान रखना, जब भी फंक्शन क्रिएट करो तो कोलन के बाद जो भी तुम लाइन लिखते हो वो इंडेंटेड 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 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे ऐसे कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें एरर दे देगा। एरर क्या है, एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक, ठीक है। इसने ब्लॉक एक्सपेक्ट किया था जो कि इंडेंटेड होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे कोलन के बाद तुम्हारा इंडेंटेड ब्लॉक नहीं है, इसीलिए यहाँ पे एरर दे दिया, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी फंक्शन क्रिएट करो तो कोलन के बाद इंडेंटेशन होना चाहिए, तभी तुम्हारा वो काम करेगा। ये हो गया यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, फ्रूटफुल फंक्शन, वाइड फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। आगे की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इस क्लास के लिए काफ़ी हो गया। अभी कोई डाउट है तो तुम लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज़ फिर नेक्स्ट क्लास में अपने डाउट्स कलेक्ट करके आना, उसमें बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, क्लियर है अभी सबको? कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में। यस आकाश, निरंजन, सर प्रेमचंद। नेक्स्ट नेक्स्ट हाँ, नेक्स्ट क्लास से हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके एक्सप्लेन कर सकते हो? हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके, प्योर हिंदी में दिक्कत है। हिंदी में दिक्कत नहीं है, पर हम्म, आप इंग्लिश में लोगे ना फिर। नहीं नेक्स्ट क्लास में आई थिंक देखो, हम्म, मैंने लास्ट संडे को जो क्लास लिया था वो, उसमें कुछ स्टूडेंट्स को हिंदी में दिक्कत था, तो मैंने हाँ वो इंग्लिश में ही लिया था। तुम्हें हिंदी में दिक्कत है या हाँ, नहीं? वही। तो मैं तो कोशिश कर, मैं हिंदी में इंग्लिश में दिक्कत ही, है। इंग्लिश में, क्योंकि मेजॉरिटी जो है उनको इंग्लिश में ही आई थिंक सूटेबल है, तो मैं अगर किसी को भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो आई अच्छा, थिंक मिक्स करके पढ़ाओगे तो दोनों को मिक्स, भी फायदा नहीं है। नहीं मिक्स करके पढ़ाऊंगा तो हिंदी वालों, इंग्लिश वालों को तो नहीं ही समझ में आ पाएगा, जिनको इंग्लिश ही चाहिए प्योर। तो मैं कोशिश करूंगा, इस क्लास में तो सारे हिंदी वाले थे तो सबको हिंदी समझ आ गया, लेकिन अगर एक भी स्टूडेंट है जिसको हिंदी नहीं समझ आ रहा है तो मैं हिंदी इंग्लिश अगर मिला के भी समझाऊंगा तो उसको काफ़ी कन्फ्यूजन होगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश में ही लूँ, ठीक है। सर प्योर इंग्लिश मतलब कुछ कुछ समझ नहीं आएगा फिर मेरे को। नहीं समझ आएगा तो तुम पूछ लेना, तो मैं बता दूंगा, ठीक है। ठीक मैं पूछता ही रहता हूँ क्लास में कि किसी को डाउट है या नहीं, तो पूछ लिया करो, मैं बता दूंगा। है, ओके। बाकी इंग्लिश, आई थिंक इंग्लिश तुम्हें सीखनी चाहिए। क्या कर रहे हो तुम अभी? बीएससी कंप्लीट है। अब बीएससी कंप्यूटर, रिजल्ट अभी आना। कंप्यूटर साइंस, नहीं नहीं सर, स्टैटिस्टिक्स में। स्टैटिस्टिक्स में कहाँ से? पुणे एसपी कॉलेज। पुणे से, अच्छा। तो देखो एसपी जैन, हाँ। एसपी जैन से। नहीं नहीं सर, परशुराम भोपाल कॉलेज। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। तो देखो अगर इंडस्ट्री में जाना है तो देखो इंग्लिश तो आई थिंक बेसिक हाँ इंग्लिश थोड़ा आती है बहुत इतना मतलब। तो आना चाहिए कि तुम हाँ कन्वर्सेशन आता बेसिक है। कर सको। हाँ। हाँ आता है तो फिर अब आने उसके बाद तुम्हें कॉन्फिडेंस भी तो बिल्ड करना होगा ना। कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा, जब तुम्हें इंग्लिश में कन्वर्सेशन करोगे, इंग्लिश में कोई बात कर रहा है तो उसे समझने की कोशिश करोगे, कि इंडस्ट्री में जाओगे इंग्लिश में बात करेंगे लोग, तुम फिर वहाँ थोड़ी बोलोगे कि सर आप हिंदी में समझा दीजिए, ठीक है। नहीं।
बाकी मैं तो कोशिश करूँगा, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो हिंदी में तुम्हें बता दूँगा अलग से, लेकिन स्टिल तुम्हारी पर्सनल कोशिश ये होनी चाहिए कि ग्रो करना है तो इंग्लिश सीखो अच्छे से, है ना? ओके सर। ठीक है? बाकी मैं सर किस हाँ, बोलो राहुल। सर आप क्लास 12 की भी पाइथन पढ़ा लेते हो, मतलब अलग क्लास लेते हो आप सर? क्या मैं समझा नहीं। सर क्लास 12 की पाइथन। क्लास 12th की पाइथन, तो क्लास यस 12th में सर। मैंने देखा नहीं उस पर क्लास 12 के पाइथन कोर्स में है क्या, बट हाँ मैं पढ़ाने को पढ़ा दूंगा, बट ये जो मैं जितना मैं इस कोर्स में कवर करूँगा वो क्लास 12th उसमें कवर हो जाएगा मुझे लगता है। तो यस तुम सर, पर सर आप सर स्क्रिप्ट मोड में आप करोगे या फिर जुपिटर में ही करोगे? जुपिटर में ही करूँगा, क्योंकि ओके बाद सर। में तुम इंडस्ट्री में स्क्रिप्ट मोड में नहीं करते हैं, सब VS कोड या जुपिटर में ही करते हैं। ठीक है? तो यस सर। स्क्रिप्ट मोड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो वहाँ बस उसका क्या नाम है, उसका आईडी ही चेंज होता है, बाकी तुम्हें कोडिंग तो वही लिखना होता है, कोई इसका ज़्यादा स्पेसिफिक एडवांटेज या डिसएडवांटेज नहीं होता है। ठीक है? जिसको जो जी सर। सुटेबल लगता है उसी में करता है। ठीक है, और किसी को तो कोई डाउट नहीं है, ये क्लास क्लोज करते हैं। ओके, यस सर। ठीक है, ओके, गुड नाइट एवरीवन। और नेक्स्ट संडे को सब लोग टाइम पे आना।